Hello everyone, myself Saket and welcome to Study Unscripted. This is the second lecture of coordination compound. In the first lecture, we have completed till isomerism, in which we have seen the stereoisomerism and the structural isomerism. After completing that, we are going to see topic 5.5, that is bonding in the coordination compounds. So let's get started with this topic. This will be the second and last lecture. First lecture था वो description में होगा, so you can go and watch if you haven't seen yet. So let's see this. Now, Werner was the first to describe the bonding features in the coordination compound and this is important. ठीक है, ये फर्स्ट आदमी थे जिन्होंने बॉन्डिंग फीचर्स को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बताया था. बस दिस थ्योरी कुड नॉट आंसर द बेसिक क्वेश्चंस लाइक, बट ये उनके कुछ ड्रॉबैक्स थे, ये जो थे डू नॉट आंसर. ठीक है, उनकी जो थ्योरी थी इससे कुछ क्वेश्चंस के जवाब हमें नहीं मिल पाए थे. सो फर्स्ट वन, व्हाई ओनली द सर्टेन एलिमेंट पोजेसेस द रिमार्केबल प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. जो सेकंड क्वेश्चन था, व्हाई द बॉन्ड्स इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज. और जो थर्ड क्वेश्चन था, व्हाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स मैग्नेटिक एंड द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज. नाउ ये सारे क्वेश्चंस के हमें अब आंसर मिल चुके हैं मॉडर्न टाइम्स में, बट एज द वार्नर वाज फर्स्ट टू डिस्क्राइब about the bonding features of this coordination compound, so he was not able to answer all these questions. So now let's read this. Many approaches have been put forth to explain the nature of the bonding in the coordination compound, that is valence bond theory. ठीक है, वो जो फीचर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ तरीकों को इजाद करा गया, उनमें से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ligand field theory LFT, and the molecular orbital theory MOT है. So we shall focus on our attention on the elementary treatment of the application of VVT and the CFT to the coordination compound. So in this chapter we are going to see about the VVT valence bond theory as well as the CFT, that is the crystal field theory. So let's first see the VVT, that is the valence bond theory. Okay, so अब इस थ्योरी में क्या था इसको अब हम देखते हैं. According to this theory, metal atom or ions under the influence of the ligands can use its n-1 d ns-np or ns-np-nd orbitals for hybridization to yield a set of equivalent orbitals of defining geometry such as octahedral, tetrahedral, square planar, and so on. Now these hybridized orbitals are allowed to overlap with the ligand orbitals and can donate electron pairs for bonding. So यहाँ पे जो important है मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ, the different color. These hybridized orbitals are allowed to overlap with ligand orbital that can donate the electron pair for bonding. Now the coordination number of different coordination numbers होते थे, ठीक है. सो उस कोऑर्डिनेशन नंबर की जो हाइब्रिडाइजेशन हो पाती तब उसको देख लो. sp3 जब होता था तो वो टेट्राहाइड्रल हो सकता था. Now this is about the distribution of hybrid orbitals in the space. अगर वो dsp2 था तो स्क्वायर प्लेनर हो सकता था, sp3d था तो tb यानी कि ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3d2 तो ऑक्टाहाइड्रल, या d2sp3 बैक बॉन्डिंग अगर के साथ है तो अगेन इट इज ऑक्टाहाइड्रल. सो हमने एक टॉपिक देखा था कि जो ये टेट्राहाइड्रल होता है नॉट टेक प्लेस इन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सो कीप इन माइंड. और ये जो स्क्वायर प्लेनर होता था ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में नहीं हो पाता था, ठीक है, नॉट सीन. सो यू हैव टू कीप दिस इन योर माइंड. ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज. It is usually possible to predict the geometry of the complex from the knowledge of its magnetic behavior on the basis of VVT. तो यहाँ पे अगेन तुम्हें एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट मिलता है. यहाँ पे पॉसिबल है प्रिडिक्ट करना ज्योमेट्री ऑफ अ कॉम्प्लेक्स, ओके, फ्रॉम द नॉलेज ऑफ इट्स मैग्नेटिक बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ VVT. तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स का ज्योमेट्री आप प्रिडिक्ट कर सकते हो अगर आपको नॉलेज है उसके मैग्नेटिक बिहेवियर का ऑन द बेसिस ऑफ VVT. तो VVT के बारे में यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, यू शुड कीप इन माइंड. नाउ इन द नेक्स्ट पैरा, इन द डाईमैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, जहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है कोबाल्ट और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स दे रखा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. सो द कोबाल्ट आयन इन दिस +3 ऑक्सीडेशन नंबर, बिकॉज यहाँ पे देख लो +3 है, ठीक है, एंड हैज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3d6.
यहाँ पे हमने 3d6 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रखा है. सो द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज एज सोन इन द डायग्राम. अब यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन इसका शो हुआ है, तो जस्ट सी दिस नाउ. ऑर्बिटल ऑफ कोबाल्ट 3 प्लस आयन, तो कोबाल्ट जो होता है दैट इज 4s2 3d7. ओके, तो यहाँ पे 3 प्लस है, तो यहाँ पे जब तुम 3 प्लस का लिखोगे तो क्योंकि जब नॉर्मल कोबाल्ट होता है दैट इज 4s2 3d7, यानी कि जब तुम CO3 प्लस को लिखोगे तो इट विल बी 3d6. ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे देखा हुआ था इस ऑक्सीडेशन नंबर का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा था. ओके, सो अब देखो इसने 3d6 को कैसे यहाँ पे इसने अरेंज कर रखा है. ठीक है, ये रहा 3D. यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5, अगेन ये पीछे से आया दैट इज 6, और 4s4 भी खाली है. नाउ D2sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स ऑफ CO3 प्लस, बिकॉज नाउ यू कैन सी दिस वेरी क्लियरली. जो हमारा कॉम्प्लेक्स था दैट वाज कोबाल्ट और अमोनिया का एक कॉम्प्लेक्स था. ठीक है, यहाँ पे अमोनिया जो था NH3, ये लाइगेंड्स थे, तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह एक्ट करेंगे और यहाँ पे बैक बॉन्डिंग होगी इन 3Ds में. ठीक है, तो इस बैक बॉन्डिंग में ऐसा कुछ अरेंजमेंट आ गया. ओके, तो यहाँ पे हमारा 2 कॉम्प्लेक्स खाली बच जाएगा. ओके, तो इसको लेट मी ड्रॉ हियर. जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगी तो बैक बॉन्डिंग होती है, तो सपोज करो आफ्टर बैक बॉन्डिंग ये कुछ ऐसा दिखेगा. और ये रहा 4p. सो हमारा जो अमोनिया है, अब हमारे यहाँ पे जो खाली स्पेस बचते हैं यहाँ पे D2sp3. सो वी सीन दैट यहाँ पे D2sp3 का हाइब्रिड मिल रहा है हमें. सो नाउ लेट्स रीड द नेक्स्ट पैरा. उसके बाद देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ. 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 फॉर ईच NH3 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई द 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल. और यहाँ पे इसने ऑक्यूपाई कर लिया है 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर NH3. Thus the complex has then octahedral geometry. Octahedral इसलिए क्योंकि यहाँ पे 6 पेयर्स हैं, एंड अगेन 6 पेयर जब ऑक्यूपाई हो रहे हैं तो उस 6 पेयर में D2sp3 हाइब्रिडाइज है. ठीक है, एंड इट इज डाईमैग्नेटिक. डाईमैग्नेटिक इसलिए बिकॉज यहाँ पे कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड नहीं है, तुम देख सकते हो. सो इट इज डाईमैग्नेटिक बिकॉज ऑफ द एब्सेंस ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्मेशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स. सिंस द इनर d ऑर्बिटल 3D इज यूज्ड इन द हाइब्रिडाइजेशन. यहाँ पे देखो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी कि बैक बॉन्डिंग हो रही है, और इनर ऑर्बिटल भी इसको हम बोल सकते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे तुम मार्क कर लो जो कोबाल्ट और जो अमोनिया का ये जो कॉम्प्लेक्स था दिस इज इनर ऑर्बिटल या लो स्पिन शो कर रहा है, या स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स है. एंड द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स. अब यहाँ पे अनदर एग्जांपल दे रखा है जो कि है अबाउट द COF6. यहाँ पे जो तुम्हारा जो फ्लोरीन है, ये जो लाइगेंड है दिस इज एक्टिंग एज अ वीक फील्ड लाइगेंड्स, और यहाँ पे ये बैक बॉन्डिंग प्रीफर नहीं कर रहा. तो सपोज करो जो हमारा कोबाल्ट था दैट वाज अगेन 4s2 3d7 हम बोल सकते हैं, बट जब वो ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है तो तुम इसको क्या बोलोगी 3d6. नाउ तुमने 3d6 का यहाँ पे अरेंजमेंट किया. नाउ दिस इज 4s4p 4d. तो यहाँ पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी. तो बैक बॉन्डिंग जब नहीं होगी तो इसको हम बोलेंगे sp3d2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होगा फॉर द CO3 प्लस, बिकॉज ये वाले पेयर्स को एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, sp3d3 ये कैसे हो गया, sp3d2 होना चाहिए नहीं. ठीक है, सो 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम 6f आयंस. ठीक है, सो कीप इन माइंड. अब तुम यहाँ पे कह सकते हो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही, तो यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे तो वी कैन से दैट दिस इज अ पैरामैग्नेटिक. अगेन अगर ये बैक बॉन्डिंग नहीं कर रहा सो दिस इज द हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, यानी कि यहाँ पे आउटर ऑर्बिटल मौजूद है. सो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अब देखो द पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स जो ये है यूजेस द आउटर ऑर्बिटल 4d. ये रहा हमारा 4d जो आउटर ऑर्बिटल को जो यूज कर रहा है इन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ sp3d2. यहाँ पे देखो कितने हैं 3 + 2 + 5 1 6. तो ये रहा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6. ठीक है, तो हो गया sp3 एंड d2. और यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिटल्स जो यूज हो रहे हैं वो 4s हैं, 4p हैं और 4d हैं, बिकॉज 3d में बैक बॉन्डिंग नहीं हुई तो इसके कोई भी ऑर्बिटल्स खाली हमें नहीं मिल पाए. तो यहाँ पे हम कह सकते हैं
दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ आउटर ऑर्बिटल complex. You can also say this is having the high spin complex. फिर जो हम नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं दैट इज अबाउट द NiCl4 और उस कॉम्प्लेक्स का जो चार्ज है दैट इज 2-. सो इज इन टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स बिकॉज अगर यहाँ पे 4 लेगेंड्स हैं, 4 कोऑर्डिनेशन नंबर है, तो वो क्या है, एक टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स है. सो इस टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में जो हमारा हाइब्रिड होगा दैट विल बी ऑफ अबाउट sp3 हाइब्रिड. अब देखो ये कैसे हो रहा है. 1s and 3p orbitals are hybridized to form the 4 equivalent orbitals oriented tetrahedrally. तो यहाँ पे एक और स्टेटमेंट है 1s and 3p orbitals are hybridized to form 4 equivalent orbitals oriented tetrahedrally. So you have to keep in mind यहाँ पे जो टर्म यूज किया है इसने equivalent orbital. Now this is illustrated below the NiCl4 जिसका चार्ज कॉम्प्लेक्स का 2- है. यहाँ पे जो निकल है, अब निकल का जो तुम प्राइमरी वैलेंसी नोट डाउन करोगे तो दैट विल बी ऑफ -2 + 4 एंड दैट इज इक्वल टू +2. ठीक है. सो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट. तो जब तुम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखोगे तो निकल की क्या होती है, निकल की होती है 4s2 3d8. तो जब तुम Ni2+ लिखोगे तो दिस विल बी ऑफ 3d8. तो जब तुम 3d8 को जब तुम अरेंज करोगे तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8. ठीक है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आया. नाउ यहाँ पे जो हमारा Cl है वो बैक बॉन्डिंग शो नहीं करेगा. ठीक है. दिस इज अ हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स. या तुम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो है नहीं, तो तुम इसको वीक फील्ड लिगेंड यहाँ पे बोलो और कह दो कि बैक बॉन्डिंग नहीं प्रीफर कर रहा. सो द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम इज एज शोन इन द डायग्राम. ईच Cl आयन डोनेट्स अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. द कंपाउंड इज पैरामैग्नेटिक. देखो अब यहाँ पे सॉरी इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे डोनेट करना चाहा. ओके. तो ये रहा S के लिए और ये रहा P sp3. यहाँ पे इसने पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट किया बिकॉज लाइगेंड का तो यही काम होता है ना. बट यहाँ पे तुम देख सकते हो कि यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं. सो यू कैन से दैट दिस इज अ एग्जांपल ऑफ पैरामैग्नेटिक. तो यहाँ पे तुम उसको हाईलाइट कर लो. कंटेन्स 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. सिमिलरली जब तुम स्ट्रक्चर यहाँ पे देख रहे हो एक और एग्जाम्पल दे रखा है दैट इज निकल और कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स हैज टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री. अब ये टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री इसलिए है बिकॉज ये जो तुम्हारा CO है दैट इज द लिगेंड, ये स्ट्रॉन्ग फील्ड है. स्ट्रॉन्ग फील्ड होने की वजह से ये बैक बॉन्डिंग शो करेगा और बैक बॉन्डिंग शो करेगा तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ तुम्हें, इसका जो CO का जो चार्ज होता है दैट इज 0. तो यहाँ पे तो इसका फॉर्मेशन कुछ ऐसा होगा 4s2 3d8. सो स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा क्रिएट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ के जो H2 हैं वो चले आएंगे इनके पास. ठीक है. तो ये कुछ D10 हो जाएगा. ठीक है. और ये पूरे ऑर्बिटल्स में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं मिलेंगे. फिर जो तुम्हारा स्पेस होगा CO के लिए वो जब डोनेट करेंगे तो वो किस में जाएंगे, वो जाएंगे 4s p. तो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो होगा sp3 एंड इट विल बी टेट्राहाइड्रल. ओके. सो इट इज डाईमैग्नेटिक बिकॉज यहाँ पे कोई अनपेयर्ड नहीं है. सिंस निकल इज इन जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट एंड इट कंटेन्स नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. सो कीप इन माइंड ये जो एग्जाम्पल्स जो दे रखे हैं NCERT में दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. Now let's see the next page. In the square planar complex, now what is the square planar complex? That is DsP2 और यहाँ पे coordination number होता है 4. So hybridization involves DsP2 जो दे रखा है, for example NiCN4 और यहाँ पे 2- है. So यहाँ पे example है ये इसका DsP2 complex के लिए. Here nickel is in +2 oxidation state. अभी हम इसको देखेंगे कैसे. और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है D8. तो अब इसको हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे है. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं निकल का होता है 28. तो दिस इज 4s2 3d8. यू कैन सी दिस. फिर जब तुम +2 के लिए लोगे तो 4s2 खत्म हो जाएगा, ओनली बचेगा हमारे पास 3d8. नाउ
ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होगा, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, देन 6 7 8। नाउ यहाँ पे है CN, सो यहाँ पे होगा बैक बॉन्डिंग, यहाँ पे होगा बैक बॉन्डिंग। सो जो हमारा जो नेक्स्ट जो हाइब्रिड हम ऑर्बिटल्स लेंगे वो हो जाएगा DsP2, क्योंकि ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होगा और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स के लोन पेयर होंगे, किसके लिए, फॉर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ CN। तो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे 4 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है 4 CN ग्रुप के लिए। तो यहाँ पे ये कौन से हैं, ये है D, ये है S, ये है P, ये है P, सो दिस इज DsP2 एंड दिस इज द लोएस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स। नाउ यू कैन सी दैट कि जो लोएस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बैक बॉन्डिंग शो करते हैं, और वो उसका जो लाइगेंड होता है दे आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ओके, सो कीप इन माइंड यहाँ पे DS2 हाइब्रिडाइजेशन है Ni2+ के लिए। नाउ द नेक्स्ट पैरा दैट ईच ऑफ द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स रिसीव अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द साइनाइड आयन। यहाँ पे हम जो देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देख लो कैसे साइनाइड आयन्स हैं कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ द कंपाउंड इज डाईमैग्नेटिक बिकॉज देयर इज नो unpaired lone electron. Okay, so this is dimagnetic as evident from the absence of the unpaired electron. So this is important to note that the hybrid orbital do not actually exist, and this is important statement. Hybrid orbitals exist नहीं करते, do not actually exist. In fact, hybridization is a mathematical manipulation of wave function, wave equation for the atomic orbitals involved. तो हमने जितना भी पढ़ा अबाउट द हाइब्रिडाइजेशन सबको इसने खत्म कर दिया ऑलमोस्ट, बिकॉज इसने सीधा बोला हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करते, बट जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दिस इज अ मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ऑफ वेव इक्वेशंस फॉर द एटॉमिक ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व्ड। so this is important statement, keep in mind. नाउ यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग कर रहा है बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स या वीक फील्ड लिगेंड्स से जो बैक बॉन्डिंग नहीं कर पा रहा, सो कीप इन माइंड वन थिंग, जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स है वो कौन कौन से थे जो हमने अभी तक देखा, जो एग्जांपल्स हमने देखा उसमें थे CN, NH3 वाले, CO वाले। तो तुम्हें एक चीज को ध्यान में रखना, जो लोन पेयर डोनर एटॉम्स हैं वो कार्बन, नाइट्रोजन या फॉस्फोरस के होते हैं, तो जनरली स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और वो बैक बॉन्डिंग कराते हैं। और जो बैक बॉन्डिंग कराते हैं वो होते हैं लोएस्ट स्पिन कॉम्प्लेक्स, ये फॉर्मेशन करते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स के। सो इन पॉइंट्स को दिमाग में रख लो बस, ठीक है। नाउ जो वीक फील्ड लिगेंड्स होते हैं उसके जो एग्जांपल्स हमने देखे थे वो कौन कौन से थे, यहाँ पे थे Cl-, F-, या कह सकते हो हेलोजेंस तुम कह लो जनरली, फिर OH- वीक फील्ड में आ रहे थे, एंड जो एक्वा था वाटर इट वाज आल्सो द वीक फील्ड लिगेंड, तो ये बैक बॉन्डिंग नहीं कराते। नाउ द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो पहले इसको हम पढ़ लेते हैं, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला है जिसको हम देख लेंगे, ठीक है। सो लेट्स रीड दिस। पहले इसको हाईलाइट कर लो, इंपॉर्टेंट जो है इसमें, मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ अ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन बी मेजर्ड बाय द मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। यहाँ पे लिख लो मेजर्ड बाय मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट्स। फिर यहाँ पे जो फॉर्मूला जो यूज होता है उसको मैं पहले बता देता हूँ बिकॉज वो आसान रहेगा जब तुम रीड करोगे। ये n जो है वो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, और इसका जो यूनिट है दैट इज BM, और BM होता है 4 मैग्नेटॉन। ओके, एंड यहाँ पे जो n है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। अब देखो
The result can be used to obtain the information about the numbers of unpaired electrons and hence structure adopted by the metal complexes. किसकी वजह से? Because of the properties of magnetic properties of the coordination compound, जिसको हम मेजर करने के लिए किसका यूज कर रहे थे? मैग्नेटिक सब्सेप्टिबिलिटी एक्सपेरिमेंट के, ठीक है। और ये फॉर्मूला जो था वो हमने देख लिया। अब देखते हैं कैसे कैसे ये फाउंड आउट हो रहा है। नाउ द क्रिटिकल स्टडी ऑफ द मैग्नेटिक डाटा ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मेटल्स। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज जो होता है रिवील करता है कुछ कॉम्प्लिकेशंस को, तो इसको कर लो हाईलाइट। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज रिवील्स सम कॉम्प्लिकेशंस, बस इतना ही रहने दो। नाउ अभी वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है? साइंस, टीचर, क्वेरी, क्रूएल, मांगे, पीस, पॉपरेट, निक्की, कुकू, जीनी। Here are 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 and 30. ये है 3D सीरीज। ओके, अब देखो क्या है। सो फॉर मेटल साइंस अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स इन द d ऑर्बिटल्स, और वो कौन से थे? लाइक Ti3+, जिसमें d1 था, बिकॉज जो Ti था उसका हाइब्रिडाइजेशन अगर तुम्हें लिखने को बोला जाए तो क्या होगा? लेट मी शो हियर। Ti का अगर हाइब्रिडाइजेशन लिखने को बोला जाए दैट विल बी 4s2 3d2। अगर जैसे बुक में इसने बोला +2 सिचुएशन नहीं +3 सिचुएशन में बोला, अगर इसको देखने तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 3d1, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल इन द 3d ऑर्बिटल। तो देखो यहाँ पे Ti3+ में 1 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है d ऑर्बिटल में। अगर वो v वाली के लिए हो तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और अगर क्रोमियम के लिए हो +3 में तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स है। सो देखो 2 vacant d orbitals are available for the octahedral hybridization with 4s and 4p orbital. The magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. तो ये सब स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट जो है 2 vacant d orbitals के अवेलेबल होते हैं for the octahedral hybridization with 4s and the 4p orbitals. So the magnetic behavior of these free ions and their coordination entities is similar. So when more than 3d electrons are present, the required pair of 3d orbitals for the octahedral hybridization is not directly available. तो उसके कुछ रूल्स होते हैं बिकॉज ऑफ द हुंड्स रूल। बिकॉज हुंड्स रूल में क्या होता है? सीरीज से भरना पड़ता है ना सारे इलेक्ट्रॉन्स को, एक लॉ को फॉलो करना पड़ता है। सो दस अगर वो d4 है तो क्रोमियम 2+ में हो सकता है, या फिर मैंगनीज 3+ में हो सकता है। d5 के लिए अलग अलग सिचुएशन है। तो ये सब तुम कर सकते हो वेरी सिंपली अगर तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है तो। ओके, बस कीप इन माइंड जो तुम्हारा जो 3D सीरीज स्टार्ट हो रहा है अगर वो 21 है तो तुम सीधा बोल लो 4s2 3d1, क्योंकि जब तुमने 4s2 लगाया तो यानी कि तुमने आर्गन पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाया, s के तो हो गया 20, और फिर 3d1 किया यानी कि वो हो गया 21। अगर तुम यहाँ पे 4s2 3d2 लिख देते तो वो जाता 22। तो 21 कौन सा था? SC, और 22 कौन सा था? Ti। तो बस इस तरीके से यूज करना है। फिर अगर यहाँ पे प्लस ऑक्सीडेशन नंबर हो जाए तो उतने इलेक्ट्रॉन्स को तुम रिमूव कर लो। पहले रिमूव करो S से, देन रिमूव करो D से। ओके, नाउ ये बस है कि अगर बैक बॉन्डिंग होता है, अब वेकेंट पेयर ऑफ d ऑर्बिटल रिजल्ट्स ओनली बाय द पेयरिंग ऑफ द 3d इलेक्ट्रॉन व्हिच लिव्स 2 1 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये बस कुछ नहीं है, बस ये फालतू की बात है। बिकॉज अगर तुम्हें ये फॉर्मूला पता है, ये फॉर्मूला पता है, और तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता है, सीरीज पता है, और तुम्हें पता है कि तुम कैसे फाइंड आउट करोगे अगर प्लस ऑक्सीडेशन चार्ज आ जाता है, ठीक है। जैसे कि 3+ था तो कैसे 3d1 हो गया, और कैसे यहाँ से 4s2 से ये एलिमिनेट हो गया इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन कहाँ से गया? 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 3d2। तो कैसे एलिमिनेट हो रहा है, कैसे तुम्हें फाइंड आउट करना है, तो हम देखते हैं नेक्स्ट। The magnetic data agrees with the maximum spin pairing in many cases, especially with the coordination compound of D6 ion. तो जब तुम्हारा D6 आयन होगा तो वहाँ पे होगा मैग्नेटिक डाटा जो एग्री करेगा मैक्सिमम स्पिन के साथ, पेयरिंग विथ मेनी केसेस, और D6 आयन के लिए। हाउएवर विद द स्पीसीज अगर D4 हो D5 हो, सो देयर आर कॉम्प्लिकेशंस। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पे MnCN6 का कुछ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी है, हैज अ मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो अब देखते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं। इसने तो सीधा बोल दिया तो तुम तो रट्टा मारोगे नहीं, तो अब इसको देखते हैं कैसे है। नाउ यहाँ पे Cn है, यानी कि जो लोन पेयर डोनर है यहाँ पे जो
लेगेंड्स का वो कार्बन है, यानी कि एक बैक बॉन्डिंग शो कर रहा होगा। अगर ये Mn है सो ये क्या होगा 4s2 3d5, क्योंकि इसका क्या होता है 25 होता है ना, देखो 21 22 23 24 25, तो तुम कह सकते हो 4s2 3d5। ना यहाँ पे जो Cn है उसका चार्ज -1 है, तो Cn का चार्ज है होता है -1, तो तुम कह सकते हो Mn कितना हो गया, Mn हो गया Mn+3। तो तुम 2 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करोगे S वाले और 1 इलेक्ट्रॉन एलिमिनेट करोगे D5 से, तो इट विल बिकम D4। नाउ D4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है अगर तुम इसको हाइब्रिडाइजेशन करना चाहो, तो 1 2 3 4, ओके, हैज मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हमें चाहिए यहाँ पे क्या MnC6 है, ओके, तो ये बैक बॉन्डिंग कर रहा होगा। तो अब हम देखते हैं बैक बॉन्डिंग कैसे कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये D4 है और हमारा जो लोन पेयर, जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स जो डोनेट होने वाले हैं बिकॉज ऑफ द साइनाइड आयंस, वो कितने हैं, शायद वो 6 पेयर में है, ठीक है, ये 6 पेयर हमारे पास आने वाले हैं, 6 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आने वाले हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ पे क्या होता है, एक जो ब्लॉक होता है वो 4s का होता है, फिर यहाँ पे p के होते हैं 3 ठो, तो एक बैक बॉन्डिंग हमें करना है। तो सोचो कि ये वाला इलेक्ट्रॉन चला गया इस वाले के पास, तो ये कुछ ऐसा दिखने लगेगा। वन टू थ्री फोर। अब हम बैक बॉन्डिंग ज़्यादा नहीं कर सकते बिकॉज हमें रिक्वायरमेंट उतनी ही की थी, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा, फिर 4s और ये जो 4p है, सॉरी 4p है, इनके पास इलेक्ट्रॉन पेयर्स आ जाएंगे क्योंकि हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स आने थे। सो ये हो गया 1 2 3 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6। तो हमारा जो इसका हाइब्रिडाइजेशन आया दैट विल बी इक्वल टू DsP3, ओके, 2 3 + 3 6, सो दिस इज अ ऑक्टाहेड्रल। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कितना हमारे पास पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो हमें पता चलता है कि वी हैव 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अवेलेबल। तो अगर हमारे पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो अब क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंटम, ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, तो जो फॉर्मूला था उसको तुम अप्लाई कर दो। सो दिस विल बी इक्वल टू 2√2, बिकॉज 2 + 2 4 × 2 8, तो ये हमारा हो गया और ये हो गया बोर मैग्नेटॉन इसका फॉर्मूला। तो यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दिस, इसका जो म्यू है दैट इज इक्वल टू 2 × 1.41, दैट इज इक्वल टू 2.82 pm बोर मैग्नेटॉन। तो हमने देख लिया कि इसको सॉल्व कैसे करना है। जैसे जैसे तुम्हारी प्रैक्टिस बढ़ेगी देन यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस इन अ वेरी फास्ट मैनर, ठीक है, बहुत आसानी से सॉल्व कर लोगे। इतना जल्द तुम्हें ज़्यादा सॉल्व नहीं करना पड़ेगा बिकॉज आई हैव टू एक्सप्लेन दिस, इसलिए मैं इतना सॉल्व कर रहा हूँ, वरना ये आई थिंक 20 सेकेंड्स काफ़ी है इसको आंसर करने के लिए, ठीक है, अगर इससे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं तो। नाउ यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, अब वो MnCl6 के हैं जहाँ पे 3- है, इस पे हैज अ पैरामैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब ये जो कंपाउंड है इसके पास सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अब हमें ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं बिकॉज हमने एक को अच्छे से समझ लिया कैसे सॉल्व करना है। नाउ यू कैन सॉल्व दिस। अब हम एक को और सॉल्व कर लेते हैं तुम्हारे लिए, ठीक है, एक और किसी क्वेश्चन को यहाँ से पसंद करता हूँ और सॉल्व कर लेते हैं, और बाकी तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो, इसको रट्टा नहीं मारना होता। फॉर एग्जाम्पल हमें समझना है COF6 3- यहाँ पे है और ये पैरामैग्नेटिक है विथ 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब हम इसे प्रूव करते हैं कैसे है, ओके, तो लेट अस सॉल्व दिस। ये क्या है, इसका कोऑर्डिनेशन एंटिटी का नाम है COF6 3-, ओके। देखो इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। COF6 -3 में था, अगर ये कैसा होगा, यहाँ पे CO का चार्ज हो जाएगा +3। सो CO का हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो क्या होता है 4s2 3d7, तो ये +3 सिचुएशन में हो जाएगा 3d6। तो अगर तुम 3d6 को यहाँ पे ड्रॉ करो, तुम्हें पता है कि फ्लोरीन बैक बॉन्डिंग नहीं करता। सो दिस इज 1 2 3 4 5 और ये रहा 6, यानी कि इस पे पास है 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। नाउ इसके पास 6
इलेक्ट्रॉन पेयर देने की क्षमता है। सो यहाँ पे होगा 1 2 3 4 5 6। इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा दैट विल बी इक्वल टू sp3d2, 3 4 5 6। ओके, तो ये हो गया हमारा हाइब्रिडाइजेशन। बट हमें क्या फाइंड आउट करना है, जो हम इसलिए सॉल्व कर रहे थे, यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना था म्यू, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज इक्वल टू अंडर रूट एन एन प्लस 2। तो तुम्हारा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 आया, सो 4 6 अंडर रूट करो 24। सो दिस आंसर इज अंडर रूट 24 बोर मैग्नेटॉन। और ये नीट एग्जाम या जे एग्जाम में बहुत सारे पूछे जाते हैं, इवन इन द मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। ओके, तो अब हमने इसको अच्छे से समझ लिया, मुझे नहीं लगता तुम्हें ज़्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है। नाउ सी दिस, ऑन द अदर हैंड ये कुछ कंपाउंड्स के नाम दे रखे हैं, आर द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इन्वॉल्विंग sp3d2। अब ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस क्यों है? अब बिकॉज ये वीक फील्ड लिगेंड्स होंगे, तो इन्होंने बैक बॉन्डिंग नहीं किया, बिकॉज यहाँ पे फ्लोरीन था अगेन फ्लोरीन था। तो हमने देखा था जो हेलोजेंस होते हैं, वाटर होते हैं, दे आर जनरली वीक फील्ड लिगेंड्स। अब जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स थे वो कौन कौन से थे? ये CN हो सकता है स्ट्रॉन्ग, ये भी CN हो सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, यहाँ पे C2O4 भी हो सकता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो दे आर द इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और इनका हाइब्रिडाइजेशन था D2sp3, बिकॉज यहाँ पे डोनर एटम जो है वो कार्बन है, यहाँ पे भी कार्बन है, और अगर डोनर एटम अगर ये डाइडेंटेट है तो यहाँ पे ऑक्सीजन होगा। तो जो भी हमने क्या देखा था, डोनर एटम कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, ऑक्सीजन हो, तो ऑक्सीजन नहीं, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, फॉस्फोरस हो, तो मेनली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है। बट एग्जाम्पल जो OH माइनस था ये अपना वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा था, और जो वाटर था वो भी वीक फील्ड लिगेंड में आ रहा था। तो बस इन चीज़ों को ध्यान रख लो, बाकी कुछ नहीं, और विद प्रैक्टिस तुम्हें समझ में आ जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है। सो लेट्स मूव टू द एग्जाम्पल 5.7। यहाँ पे द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट, ये जो क्वेश्चन है दैट इज 5.9 वो मैग्नेटॉन। सो प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो हम ज्योमेट्रीज को पहले बताने से पहले हमें ये पता करना होगा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड, जो फर्स्ट टर्म होता है ना बोर मैग्नेटॉन का, तो तुम इसको सॉल्व करोगे तो इसका अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो 5 ही होंगे। अब ये एक ट्रिक है, बिकॉज अगर मैं इसको प्रॉपर फॉर्मूले से सॉल्व करने जाऊँ, ये वाले फॉर्मूले से लगा के, तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होगा। एंड इफ़ यू आर द स्टूडेंट ऑफ अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो यू डोंट हैव दिस मच टाइम, तो तुम्हें ये ट्रिक पता होनी चाहिए थी, तो इसलिए मैंने बता दी यहाँ पे। सो यहाँ पे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अब मुझे भी नहीं पता, सो लेट्स चेक इट फ्रॉम देयर, यहाँ पे 5 है भी कि नहीं। सिंस द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Mn2 प्लस आयन, कॉम्प्लेक्स आयन का है 4, यहाँ पे देखो 4 है ना, और ये बैक बॉन्डिंग नहीं करेगा बिकॉज ये है हेलोजन, ब्रोमीन है। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे Mn जो है वो +2 में है, तो ये हो जाएगा 4s2 जो था वो खत्म हो जाएगा, और सिर्फ 3d5 बचेगा। तो देखो ये रहा 5 इलेक्ट्रॉन्स जो अनपेयर्ड है, और फिर यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी दैट विल बी sp3। अगर sp3 है तो ऑफकोर्स इसे क्या होना चाहिए था, टेट्राहाइड्रल होना चाहिए था। तो हम देखते हैं अगर हमारा ये सही है कि गलत हो रहा है। सो इट विल बी इधर टेट्राहाइड्रल sp3 के साथ, या होगा स्क्वायर प्लेनर dsp2 के साथ। तो स्क्वायर प्लेनर तब होता जब ये बैक बॉन्डिंग करता और ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म करने देता। बट द फैक्ट इज दैट द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द कॉम्प्लेक्स इज 5.9 वो मैग्नेटॉन। इट शुड बी टेट्राहाइड्रल इन शेप। देखो कितना आसानी से हो गया, rather than the square pyramidal, because of the presence of the 5 unpaired electrons in the d orbitals. So this is quite easy. इसको तुम अलग अलग तरीके से अप्रोच ले सकते थे और सॉल्व कर सकते थे। सो दिस इज जस्ट अ कप ऑफ अ केक फॉर यू, अगर तुमने एनसीईआरटी ढंग से कर लिया। और क्वेश्चंस क्रिएट होते हैं ऐसे नीट और जेईई में। पीवाईक्यू डाक देख लो, 2 साल 3 साल में कितने बारे क्वेश्चन पूछे जा चुके होंगे। मुझे अभी तक याद है नीट में ये मैच द कॉलम में पीवाईक्यूज में थे। ओके, सो 5.5.3 लिमिटेशंस ऑफ वीवीटी। अब यहाँ पे कुछ लिमिटेशंस हैं जो हमने अभी देखा, पूरा वीवीटी थ्योरीज को हमने देखी, जहाँ पे हमने मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड आउट करना सीखा, हाइब्रिडाइजेशन, बैक बॉन्डिंग, वीक फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये सारे क्वेश्चन में आते थे वीवीटी के। तो अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, तो अब देखते हैं। तो हमें जो वीवीटी होता है वो एक्सप्लेन क्या कर रहा होता है। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू अ लार्ज एक्सटेंट एक्सप्लेन्स द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर जैसे हमने टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ऑक्टाहाइड्रल देखा। मैग्नेटिक बिहेवियर यानी कि अनपेयर्ड है या पेयर्ड है,
तो उसका बोर मैग्नेटॉन, ये सब हम फाइंड आउट करते थे मैग्नेटिक मूवमेंट से। तो ये सब हमने देखा, बट ये सफ़र करता है कुछ जगहों पे, एक शॉर्टकमिंग्स है कुछ जगहों पे, तो वो देखते हैं कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, इट इन्वॉल्व्स अ नंबर ऑफ एजम्पशंस, तो यहाँ पे काफ़ी सारे एजम्पशंस होते हैं, फर्स्ट पॉइंट ये हमारा, ठीक है। सेकेंड, डज नॉट गिव क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द मैग्नेटिक डाटा, ओके। तो यहाँ पे डाटा से रिलेटेड भी प्रॉब्लम है। डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कलर भी नहीं बता रहा कौन सा है। डज नॉट गिव्स द क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द थर्मोडाइनेमिक या काइनेटिक स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, स्टेबिलिटी और थर्मोडाइनेमिक और काइनेटिक सारी टाइप स्टेबिलिटीज को बताने में ये असक्षम है। नाउ पॉइंट नंबर 5, नॉट मेक अ एग्जैक्ट प्रिडिक्शन रिगार्डिंग द टेट्राहाइड्रल या स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर ऑफ द 4 कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्सेस, तो ये डायरेक्टली नहीं बता पाता ना 4 देखे कि ये टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है। ये 5th प्रॉब्लम था। 6th, ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाता बिटवीन द वीक एंड द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, ओके। ये हमारा 6th अजम्पशन है, सॉरी 6th प्रॉब्लम है, जो कि ये गलत है। तो इसको दूर करने के लिए दूसरा थ्योरी लिया गया, दैट वाज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। इसको समराइज कर लो। यहाँ पे assumptions होते हैं, यहाँ पे क्वांटिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा नहीं होता, नॉट। यहाँ पे नहीं होता कलर एग्जिबिटेड कौन सा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के द्वारा। यहाँ पे हमें नहीं पता चलता क्वांटिटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडाइनेमिक स्टेबिलिटी या द काइनेटिक स्टेबिलिटी। हमें यहाँ पे नहीं पता चलता रिगार्डिंग कि वो टेट्राहाइड्रल है या स्क्वायर प्लेनर है, किसी कोऑर्डिनेशन नंबर को देख के, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को देख के हमें नहीं पता चल पा रहा कि वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए हमने और कुछ का यूज किया, दैट वाज द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। So let's see this. So crystal field theory, first of all, it is an electrostatic model which considers the metal ligand bond to be the ionic arising purely from the electrostatic interactions between the metal ion and the ligands. तो तुम यहाँ पे कह सकते हो जो टर्म्स, तो हम टर्म्स को लिखते चलेंगे, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं पहली चीज को कि ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल है वो कंसीडर करता है जो मेटल लेगेंड्स हैं, मेटल लेगेंड जो बॉन्ड्स हैं उनको आयनिक कंसीडर करता है, जो अराइज हो रहे होते हैं बिकॉज ऑफ द प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शंस बिटवीन द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स, ठीक है। फिर ये जो यहाँ पे लिगेंड्स हैं इनको एक कंसीडर करता है एज अ पॉइंट चार्ज इन केस ऑफ अनायन, और पॉइंट डाइपोल इन केस ऑफ अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। पॉइंट चार्ज कब कंसीडर करता है? इन केस ऑफ अनायन, व्हेन अनायन, ठीक है। और इसी लाइगेंड को एक कंसीडर करता है एज अ पॉइंट डाइपोल व्हेन न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, कंफ्यूजिंग भी है, तो ये तुम्हें याद रहना चाहिए कि ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक मॉडल पे बेस्ड है, और ये एक लेगेंड को एक पॉइंट चार्ज मानता है जब वो एक अनायन के फॉर्म में होता है, और उसी लेगेंड को वो पॉइंट डाइपोल मानता है जब वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होता है। जैसे कि सपोज करो कि H2 एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ठीक है, तो CFT के हिसाब से उसको वो एक पॉइंट डाइपोल मान रहा है। सो द 5d orbitals is an isolated gaseous metal atom ion have the same energy, that is they are the degenerate। और यहाँ पे हमें मिलता है डेफिनेशन काफ़ी अच्छा सा डीजेनरेट का, और ये क्वेश्चंस पूछे भी जाते हैं मॉक पेपर्स में, यू नो दिस। डीजेनरेट क्या आप लिखो, 5d orbitals in an isolated gaseous metal atom या ion have the same energy, that is that they are degenerate। Now this degeneracy is maintained if a spherical symmetrical field of negative charge surrounds the metal atom ion। यानी कि यहाँ पे लाइगेंड्स को बातें कर रहा है, लाइगेंड्स के बारे में, ठीक है। वहीं तो होते हैं ना एक ठो निगेटिव चार्ज के सराउंडिंग्स जो क्रिएट करते हैं, वो किसके लिए? मेटल आइटम्स के लिए, मेटल आयंस के लिए। हाउएवर दिस निगेटिव फील्ड इज ड्यू टू द लेगेंड्स। देखो यहाँ पे इसने बोल दिया इधर अनायंस, जब वो अनायंस है तो वो पॉइंट चार्ज की तरह कंसिडर होंगे, और द निगेटिव एंड्स ऑफ द डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, मतलब जब वो एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तब, लाइक NH3 एंड वाटर। तो यहाँ पे इसने एग्जाम्पल भी दे रखा है, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो है वो है अमोनिया या वाटर।
in a complex, so it becomes asymmetrical and the degeneracy of the d orbital is lifted. तो यहाँ पे तुम मार्क कर लो, क्या मार्क करना है? However, this negative field is due to the ligands, अब वो अनायन हो या निगेटिव एंड हो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स के, लाइक वाटर में ऑक्सीजन है और अमोनिया में नाइट्रोजन है, सो इट बिकम्स असिमेट्रिकल एंड द डीजेनरेसी यानी कि जो इक्विवेलेंट पावर था, सेम एनर्जी था उसके ऑर्बिटल्स का, ऑफ द डी ऑर्बिटल इज लिफ्टेड, सो इट रिजल्ट्स इन द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल। तो यही रीजन है कि डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होते हैं। ओके तो ये वाले पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें पता चल रहा है कि रीजन किसकी वजह से डी ऑर्बिटल की स्प्लिटिंग होती है, एंड द पैटर्न ऑफ स्प्लिटिंग डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द CF यानी कि क्रिस्टल फील्ड। तो अब हम देखने वाले हैं फर्स्ट क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, यानी कि जिसमें 6 लाइगेंड्स होंगे जो कि यूनिडेंटेड है, या 3 लाइगेंड्स होंगे जो कि बाइडेंटेड है, या एक लाइगेंड होगा जो कि पॉलीडेंटेड है लाइक हेक्साडेंटेड है, EDT है। तो ये सब तुम्हें पता होनी चाहिए। तो हमें ये पता चल गया कि ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग जो हो रहा है, यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स जो स्प्लिट हो रहे हो किस रीजन से हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो निगेटिव फील्ड जो क्रिएट हो रहा है लाइगेंड्स की वजह से, वो अनायंस हो या फिर वो डाइपोलर मॉलिक्यूल्स के एंड्स हो, तो वो असिमेट्रिकल हो रहा है और यहाँ पे डीजेनरेसी डी ऑर्बिटल्स की लिफ्ट हो जा रही है, ठीक है, बिकॉज वो असिमेट्रिकल है। तो यहाँ पे इसको मार्क कर लो बिकॉज वो असिमेट्रिकल है। सो यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रही है। तो पहले हम ऑक्टाहेड्रल के बारे में देखते हैं। तो पहले इसको पैराग्राफ को रीड कर लो, फिर जो इंपॉर्टेंट होगा उसको समझते हैं। In the octahedral coordination entity with the 6 ligands, we know this, surrounds the metal atom ion, there will be repulsion between the electrons in metal d orbital and the electrons or negative charges of the ligands. तो यहाँ पे जो स्प्लिटिंग हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है? रिपल्सन हो रहा है यहाँ पे, इसलिए हो रही है बिटवीन द इलेक्ट्रॉन्स, किसके इलेक्ट्रॉन, मेटल डी ऑर्बिटल्स के, और इलेक्ट्रॉन्स या निगेटिव चार्ज यानी कि कोई लोन पेयर है किसी लाइगेंड्स पे, और वो अनायंस हो या कोई डाइपोलर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। सो सच अ रिपल्सन इज मोर व्हेन द मेटल डी ऑर्बिटल इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द लिगेंड एंड व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड्स। तो इसको तुम मार्क कर लो। सच रिपल्सन इज मोर जब मेटल डी ऑर्बिटल होता है डायरेक्टेड होता है लिगेंड्स की तरफ, या व्हेन इट इज अवे फ्रॉम द लिगेंड्स। तो यहाँ पे देखो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz स्क्वायर, यहाँ पे दो यहाँ पे डी ऑर्बिटल्स के बारे में दे रखा है, विच पॉइंट्स टुवर्ड्स द एक्सिस अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड विल एक्सपीरियंस मोर रिपल्शन एंड विल बी रेज्ड इन द एनर्जी, ठीक है। और फिर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इसको हम डायग्राम्स में क्लियरली एक्सप्लेन होते हुए देखेंगे। एंड द dxy dy z and the dxy dxz orbitals which are directed between the axes will be lowered in energy relative to the average energy in the spherical crystal field. thus यहाँ पे जो degeneracy है of the d orbital has been removed, और वो रिमूव होने के पीछे है due to the ligands electron metal electron repulsion, ठीक है, जो हमने ऊपर अब देख लिया था, in the octahedral complex to yield the 3 orbital of lower energy, वो है T2g और दो एनर्जी लेवल होते हैं Eg में, ठीक है, T2g and Eg. So this splitting of the degenerate levels due to the presence of ligands in the definite geometry, इसको हम बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, और इस एनर्जी ऑफ सेपरेशन को हम डोनेट करते हैं सबस्क्रिप्ट O, यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल को डोनेट कर रहा है डेल्टा O. Now this energy of the 2 Eg orbitals will increase by 3/5, और यहाँ पे अगेन डेल्टा O है, and the 3 sets of T2g will decrease by 2/5. तो अब हम इसको डायग्राम्स में पहले देख लेते हैं, फिर इसको हम नेक्स्ट पेज को रीड करते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई फ्री मेटल आयंस है, और यहाँ पे जो मेटल डी ऑर्बिटल है वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, और यहाँ पे dxy dxz और dyz दे रखा है। नाउ एवरेज एनर्जी ऑफ द डी ऑर्बिटल इन द स्फेरिकल क्रिस्टल फील्ड, नाउ द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स इन द ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल फील्ड, यहाँ पे स्प्लिटिंग हो रहा है, यहाँ पे एवरेज एनर्जी है, और यहाँ पे फ्री मेटल आयंस के बारे में दिखा रखा है। तो यहाँ पे एनर्जी को मार्क कर रखा है, और यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स को शो कर रहा है, और यहाँ पे देखो जो 3/5 डेल्टा O से जो एनर्जी रेज हो चुकी है किसकी, dx स्क्वायर
माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जो कॉमा होगा बीच में उसके वजह से। और यहाँ पे जो एनर्जी जो डिक्रीज हो रखी है 2/5 से, किसके लिए, वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए। और ये T2J लेवल के तीनों हैं, और EG लेवल के लिए वो है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा डी जेड स्क्वायर। ओके, और यहाँ पे एक टर्म यूज हुआ है दैट इज द बैरी सेंटर, इसको तुम मार्क रख लो। अभी हम इसको एक बार और समराइज करेंगे, पर देख लो पूरे स्टेटमेंट को देख लेते हैं। सो दिस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डेल्टा ओ डिपेंड्स अपॉन द फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द लिगेंड एंड द चार्ज ऑन द मेटल आयंस, ये हमें पता है। सो some ligands are able to produce a strong field. In this case the splitting will be large whereas the other produce the weak field, और यहाँ पे splitting जो होगी d ऑर्बिटल्स की small होगी, ठीक है। So in general ligands can be arranged in a series of the order of the increasing field strength as shown below। तो यहाँ पे तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाते हैं, बिकॉज यहाँ पे इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल, इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ के बारे में दे रखा है। तो हमें यहाँ पे ये पता चलता है जो CO होता है उसकी हाईएस्ट फील्ड स्ट्रेंथ होती है, देन CN, देन EN, देन अमोनिया, देन EDTA, देन NCS वाटर ऑक्सलेट, OH माइनस, F माइनस, H2 माइनस, Cl माइनस, SCN माइनस, Br माइनस और लास्ट में I माइनस। एंड दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चन क्रिएट हो चुके हैं, तो तुम्हें पता होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पे साइड में लिखते हैं दैट दिस इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी। ये जो सीरीज है इसको याद रखना है तुम्हें। एंड ऑल्सो अगर ये सीरीज ऑफ एनर्जी के लिए है तो तुम वेवलेंथ से जो PYQ क्वेश्चन एक आ चुका है इन 2017 नीट एग्जामिनेशन, यू नो दैट एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है दैट इज hc अपॉन लैम्डा। सो जब तुम्हें लैम्डा फाइंड आउट करने को होगा दैट विल बी इनवर्स ऑफ एनर्जी। तो ये जो तुम्हारी जो सीरीज है वो उल्टी हो जाएगी जब वेवलेंथ के टर्म्स में ये क्वेश्चन पूछेगा। तो जब वेवलेंथ के टर्म्स में पूछेगा स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ, तब यहाँ पे I माइनस सबसे हाईएस्ट होगा, देन Br माइनस सेकेंड हाईएस्ट होगा और सबसे लीस्ट होगा CO। बट जब एनर्जी का पूछेगा तो ये सीरीज जैसे बुक में दे रखी है वैसे ही होगी। सो दिस सीरीज इज टर्म्ड एज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, अब हमने इस सीरीज के बारे में देख लिया। अब उससे पहले जो यहाँ से जो टर्म्स क्रिएट होंगे उसको तुम सेपरेटली लिख लो, अगर क्योंकि यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस होंगे तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं स्टेटमेंट जो क्रिएट हो सकते हैं। चलो इसको हम डायग्राम के साथ देखते हैं तो ज़्यादा वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी। तो यहाँ पे देखो, पहले मुझे इरेज करना होगा, ठीक है। सो पहले हम देखते हैं EG के लिए, या तुम कह लो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इरेज हो चुका है, कॉमा dz स्क्वायर। तो पहले हम इसके लिए देखते हैं, ये EG है, ये 3/5 डेल्टा ऑक्टाहाइड्रल है। तो यहाँ पे दो एरो ऐसे लिखो, वेट, तो इसको हम लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा है इसको हम लिखने वाले हैं अबाउट EG, और EG में इंक्लूडेड है dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमा dz स्क्वायर, ये दोनों d ऑर्बिटल्स हैं। तो इसके बारे में तुम देखो, पहले जो पीछे जो टेक्स्ट में था बस मैं उसको सिंप्लीफाइड वे में लिख रहा हूँ, बिकॉज अगर स्टेटमेंट क्रिएट हो तो तुम्हें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, यू शुड बी क्लियर, बिकॉज वो जो काफ़ी हॉस पॉश होकर लिखा हुआ है तो काफ़ी प्रॉब्लम होगी। सो यू हैव टू कीप इन माइंड, यहाँ पे जो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर या dz के ऑर्बिटल्स हैं तो ये पॉइंट कर रहे होते हैं, तो दीज points towards the axis along the direction of the ligand, the axis towards direction of ligands। यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, पॉइंट कर रहे होते हैं। तो इसकी वजह से तो ये जो पॉइंट कर रहा है ना, इसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। प्रॉब्लम्स क्या क्या हो, इसके लिए तो बेटर ही होता है। तो जो फर्स्ट होता है, यहाँ पे मोर रिपल्सन क्रिएट हो जाती है। मोर रिपल्सन कहाँ पे,
dx² dy² और dz² के लिए। यहाँ पे मोर रिपल्सन क्रिएट होती है, यहाँ पे कह सकते हो कि मोर रिपल्सन यानी कि यहाँ पे मोर एनर्जी होती होगी। ऑल्सो यहाँ पे मोर डायरेक्शनल होता है ये। यहाँ पे मोर एनर्जी है ना, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो, रेज टू मोर एनर्जी, ठीक है, क्योंकि ये तो ऊपर चला गया ना मोर एनर्जी के पास, तो वो कितना रेज्ड हो रहा है, वो हो रहा है 3/5 डेल्टा ओ से रेज हो जा रहा है। तुम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा होता है इसको रेज होते हुए। नाउ अब हम देखते हैं अबाउट dxy dxz dzx ये तीनों के बारे में। तो इसके लिए हम यूज करते हैं नीचे वाले पोर्शंस जो खाली हैं। ओके, तुम भी अपनी एनसीईआरटी में से लिख लो जिससे तुम्हें प्रॉब्लम्स ना हो याद करने में, ठीक है। तो पहली बात इसमें तुम माइंड रखो किसके पास होता है लेस एनर्जी। दूसरी पॉइंट जो होती है ये अवे होता है, टूवर्ड्स नहीं होता है, अवे फ्रॉम द वो क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड कह सकते हो। और यहाँ पे लेस रिपल्सन भी होता है, लेस रिपेलिंग। सो इसकी वजह से ये 2:5 से ये डिक्रीज हो जाता है नीचे की तरफ, डेल्टा ओ तुम देख सकते हो यहाँ पे एरो इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज होते हुए। नाउ ये किसकी वजह से होता है, सो इसके पीछे भी रीजन है, और वो रीजन है बिकॉज ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं dxy है dyz है या dzx है, दे आर डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस, बिकॉज डायरेक्टेड बिटवीन द एक्सिस। तो इसकी वजह से इनकी एनर्जी लोअर हो जाती है रिलेटिव टू द एवरेज एनर्जी, और ये रहा हमारा एवरेज एनर्जी, ठीक है, ये हमारा एवरेज एनर्जी था, और इससे इसकी एनर्जी लोअर्ड हो गई 2/5 से। बट वहीं जो एवरेज एनर्जी से अबव हो जा रही थी किसकी, dx² y² dz की, कितनी 3/5 से। तो कीप इन माइंड, और ये रहे वो एक्सिस जिसको हम देख रहे थे, जिसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। अब तुम यहाँ पे देखो, ये जो एक्सिस है ये जो डायरेक्टेड टूवर्ड्स है, जैसे हमने यहाँ पे देखा, दिस पॉइंट्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ द लिगेंड्स। तो यहाँ पे देखो, ये एक यहाँ पे डायरेक्टेड है, एक यहाँ पे डायरेक्टेड है, एक यहाँ पे डायरेक्टेड है, ठीक है। तो तुम इससे तुम डिफ्रेंशिएट कर सकते हो, जो डायरेक्टेड है उनकी एनर्जी लेवल अबव हो चुकी है एवरेज से, और जो डायरेक्टेड नहीं है वो बिटवीन द एक्सिस डायरेक्टेड है, तो उनकी एनर्जी लेवल डिक्रीज हो चुकी है, ओके, 2/5 से, यानी कि उनकी एनर्जी लेवल 0.4 से डिक्रीज हो चुकी है। और जो वो दोनों जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द एक्सिस थे, उनकी एनर्जी, दोनों डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी 0.6 से इंक्रीज हो चुकी है, जो कि डेल्टा ऑक्टाहेड्रल जो सबस्क्रिप्ट यूज हम कर रहे थे उसको हम शो कर रहा था, ठीक है। तो इस जो पैराग्राफ था इसको हमने समराइज कर दिया अपने डायग्राम के साथ, ओके। और ये जो ब्रेकडाउन हो रहा था इसमें देख लो, इसमें फिर हम एक बार और देख लेते हैं। जो ब्रेकडाउन हो रहा था ड्यू टू द लिगेंड्स इलेक्ट्रॉन मेटल इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से, क्योंकि यहाँ पे लिगेंड्स का इलेक्ट्रॉन और मेटल का इलेक्ट्रॉन दोनों रिपेल कर रहे थे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, जिसकी वजह से ये यील्ड करते हैं 3 ऑर्बिटल्स ऑफ लोअर एनर्जी। ये अपना T2g और Eg के बारे में बात कर रहा है, 2 ऑर्बिटल्स ऑफ द हायर एनर्जी, बिकॉज T2g तो लोअर एनर्जी है ना, तो इसकी वजह से स्प्लिट कर जाता है। और हमने ये सारा देख लिया कैसे स्प्लिट कर रहे होते हैं। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, उसको हम देखते हैं, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं अपने पूरे टॉपिक को, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक में जाने से पहले उस फॉर्मूले को लिख लेंगे नीचे। नाउ लेट्स रीड दैट। सच सीरीज को हम बोलते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, और ये एनर्जी के लिए है। जब वेवलेंथ के लिए होगा तो ये रिवर्स हो जाएगा। सो इट इज एन एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड सीरीज, पता है तुम्हें एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड है, और ये बेस्ड किसके वजह पे, बेस्ड है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट पे, ठीक है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड, और बेस्ड है ये एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय द कॉम्प्लेक्स विद डिफरेंट लिगेंड्स। तो तुम यहाँ पे कह सकते हो, let us assign the electron in the d orbital of metal ion in octahedral coordination entities। obviously यहाँ पे जो सिंगल डी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो ऑक्यूपाई करेंगे वन ऑफ द लोअर T2g ऑर्बिटल्स इन D2 D3 कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, और जो डी इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई करेंगे T2g ऑर्बिटल्स को सिंगली, वो अकॉर्डिंग टू होगा हुंड्स रूल के। तो तुम इस चीज को मार्क कर लो कि यहाँ पे हुंड्स रूल कितना इंपॉर्टेंट रोल कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई ऑर्बिटल असाइन हो रही है तो उसको किस ऑर्बिटल में जाना है, किस सीरीज में फिलअप होना है। फॉर एग्जाम्पल पहले T2g में जाना है, फिर Eg में जाना है, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, हुंड्स रूल की वजह से। नाउ फॉर D4 आयंस 2 पॉसिबल पैटर्न्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन अराइजेस। तो यहाँ पे फर्स्ट पैटर्न है, द फोर्थ इलेक्ट्रॉन वुड एंटर द T2g लेवल, या वो पेयर हो सकता है विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन,
या वो अवॉइड कर सकता है पेइंग द प्राइस ऑफ पेयरिंग एनर्जी बाय ऑक्यूपाइंग द ईजी लेवल, यानी कि हायर एनर्जी लेवल। सो विच ऑफ दिस पॉसिबिलिटीज, अगर उसको लिए भी डिपेंडेंट करता है किस पे, रिलेटिव मैग्नीट्यूड पे, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग के, और यहाँ पे डेल्टा ओ दे रखा है एंड द पेयरिंग एनर्जी है यहाँ पे पी। पी रिप्रेजेंट्स द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग, और सिंगल ऑर्बिटल के लिए ये होता है पी। तो अब हम देखते हैं पहले कि कैसे फोर्थ इलेक्ट्रॉन डिसाइड करता है कि उसे क्या करना है। ओके, सो लेट्स सी दिस। तो तुम्हें पहली चीज क्लियर रहनी है कि जो इस टॉपिक को तुम पहले समराइज करो, फिर इसको हम देखते हैं इस 2 पॉइंट्स को, बिकॉज ये 2 पॉइंट्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमने इस चीज को देख लिया था, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। तो यहाँ पे तुम एक चीज लिखो कि जो अपनी D2 है या D3 है, ये तो अपनी लोअर एनर्जी लेवल जो था अपना T2G में जाना प्रीफर करते हैं बिकॉज ऑफ द कुंट्स रूल, ठीक है। बट अपने पास जो D4 है उसके पास होता है ऑप्शन, या तो जा सकता है ये T2G के पास, या फिर आ सकता है ये EG के पास, ठीक है। तो ये जो इसके पास होता है ऑप्शन, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ये ऑप्शन किसके लिए अवेलेबल है, फॉर ओनली द फोर्थ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बाकी के जो 3 इलेक्ट्रॉन उनको तो T2G में जाना है, कंफर्म है। बस ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए कि ये EG में जाना चाहता है या ये T2G में जाना चाहता है। तो अगर जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर करता है T2G लेवल में, देन पेयर विद द एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसको पेयर होना होगा, पेयर विद एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन। बट जब ये EG में जाना चाहता है, could avoid paying the price of the pairing energy and can occupy the EG, which of these possibilities occurs, ठीक है। तो ये EG में तब जाएगा जब ये अवॉइड करना चाहता है, टू अवॉइड पेयरिंग चार्ज जो इसको देना है ना, पेयरिंग एनर्जी जो इसको देनी है, टू अवॉइड पेयरिंग एनर्जी पेइंग द पेयरिंग एनर्जी। जब इसको अवॉइड करना है पेयरिंग एनर्जी को पे करने के लिए, तो ये EG में जाना प्रीफर करेगा। बट अगर ये पेयरिंग एनर्जी को दे रहा है तो ये एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जाकर मिल सकता है और ये T2G लेवल में रह सकता है। कौन? फोर्थ इलेक्ट्रॉन। और ये है EG फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन। तो EG कौन है तुम्हारा? EG है तुम्हारा dx² - y² dz²। तो इन सभी रूलों में इनको फॉलो एक ही रूल को करना है, दैट इज द Hund's रूल, ठीक है। नाउ अब ये जो 2 कंडीशंस हैं इसको देखने के लिए 2 पॉइंट्स यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 करके देखते हैं। तो पहला जो कंडीशन है, पेयरिंग एनर्जी अगर हाइयर है डेल्टा ओ के, सो द फोर्थ इलेक्ट्रॉन इंटर्स द EG ऑर्बिटल, तब तुम्हारा जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है वो इंटर करेगा EG ऑर्बिटल में, ओके। और वहाँ पे जो कन्फिग्रेशन होगा वो कन्फिग्रेशन होगा T2G EG1। और यहाँ पे जो लिगेंड्स जो होंगे इस टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, वो होंगे वीक फील्ड लिगेंड्स, ठीक है। वो होंगे वीक फील्ड। तो वीक फील्ड है तो उनके पास होगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और उनके पास होगा वीक फील्ड लिगेंड तो है ही है, ठीक है। तो आप देख लेते कुछ और है क्या। तो यहाँ पे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स इनके पास और इनके पास वीक फील्ड लिगेंड्स हैं, तो ये पॉइंट्स दे रखा है। तो ये कुछ सिचुएशन है जिसमें वो EG में जाना प्रीफर करेगा, प्रीफर EG, ओके। तो नाउ जो सेकेंड सिचुएशन है, दैट इज जब तुम्हारा डेल्टा O ग्रेटर होगा पेयरिंग के। यहाँ पे जो P है ना वो देखो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, P रिप्रेजेंट द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन पेयरिंग इन अ सिंगल ऑर्बिटल, यानी कि तुम कह सकते हो कि ये नेवरदलेस बैक बॉन्डिंग को कह रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको पेयर होना है ना वापस जाके। तो देखो जब डेल्टा O ग्रेटर होगा पेयरिंग एनर्जी के, तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ये पेयरिंग कर सकता है, सॉरी, तब यहाँ पे ये T2G में जा सकता है। सो इट बिकम्स मोर एनर्जेटिकली फेवरेबल फॉर द फोर्थ इलेक्ट्रॉन टू ऑक्यूपाई द T2G ऑर्बिटल। तो ये जा सकता है T2G ऑर्बिटल में। और यहाँ पे कॉमन में देखो देखो फोर्थ इलेक्ट्रॉन, तो ये T2G में चला जाएगा तो ये कैसा दिखेगा,
ये दिखेगा T2G4 EG0। नाउ लिगेंड्स विच प्रोड्यूस दिस इफेक्ट नोन एज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, क्योंकि यहाँ पे हो जा रही है बैक बॉन्डिंग। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स, अगर बैक बॉन्डिंग हो रही है तो यहाँ पे लो स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। सो अब हमें अगर कैलकुलेट करना है टू शो दैट द D4 to D7 coordination entities are more stable for strong field as compared to the weak field cases, ये हमें कैलकुलेशन से पता चलता है, इसको तुम हाईलाइट कर लो। कैलकुलेशन सोज दैट D4 से लेके D7 के जो कोऑर्डिनेशन एंटिटीज हैं आर मोर स्टेबल फॉर स्ट्रॉन्ग फील्ड एज कंपेयर टू द वीक फील्ड लिगेंड, यानी कि वो TTG के साथ पेयर होना वो ज़्यादा प्रीफर करना चाहते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड के साथ एज कंपेयर टू वो EG में जाना नहीं चाहते। ठीक है, तुम ऐसे कह लो। तो हमें ये पता चला जो हमारे फोर्थ इलेक्ट्रॉन था उनके पास जो ऑप्शन था कि तुम्हें T2 जाना है या EG जाना है, तो वो T2G में तब जाता जब उसके पास एनर्जी होता कि वो पेयरिंग के लिए वो खर्च करना चाहता है। ठीक है, वो अपना पेयरिंग एनर्जी खर्च कर देता और वो जाके बैक बॉन्डिंग करता, और वहां पे हम कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ऐसा हो रहा है, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ पे हम बोल सकते थे नाउ। बट जब वो खर्च नहीं करना चाहता, वो अवॉइड करना चाहता है कि नहीं मुझे नहीं खर्च करना अपना पेयरिंग एनर्जी, यानी मुझे बैक बॉन्डिंग भी नहीं करना, मैं मैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के साथ खुश हूँ, मैं वीक फील्ड लिगेंड वाला हूँ और मैं EG के साथ जाना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो, तो ये फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए था। बट जनरली ऐसा देखा जाता है D4 to D7 के लिए प्रीफर होता है कि वो T2G में जाना चाहते हैं। ठीक है, सो जनरली इट इज सीन, और भी NCERT की पॉइंट है, सो कीप इन माइंड। हाँ देखो हमने इसको काफ़ी अच्छे से देख लिया, क्योंकि ये हार्डेस्ट है इस चैप्टर का इसको एक्सप्लेन करना। अगर तुम्हें थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है सो यू शुड सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक इट। ओके, सो ओके, अब इसका हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं जिसको तुम्हें याद रखना है। तो चलो हम एक क्वेश्चन को ही सॉल्व कर लेते हैं, जो कि 2012 का एक PYQ है, बिकॉज ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है सॉल्व करना, क्योंकि इससे तुम्हें बेटर अंडरस्टैंडिंग आने वाली है इस टॉपिक के बारे में। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन दैट टॉपिक। ये 2012 का PYQ है। आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, और तुम्हें एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला पता चलेगा जो कि तुम्हारे NCERT में डायरेक्टली तो नहीं है, बट अगर ये PYQ में है देन इट इज इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो तुम्हें पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने देखा था कि सपोज करो कोई D6 है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड यूज हुआ है। ठीक है, यानी कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग हो रही होगी। तो तुम कह सकते हो कि ये क्वेश्चन था अपना 2012 पर। चलो देखते हैं इसको। तो अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और इसके पास है D6, तो यू कैन से दैट कि जो ये T2G लेवल होगा और यहाँ पे EG लेवल होगा, तो जो तुम्हारा T2G लेवल होगा यहाँ पे होते हैं 3 ऑर्बिटल्स और EG में होते हैं 2 ऑर्बिटल्स आफ्टर स्प्लिटिंग। तो ये होते हैं ऑर्बिटल्स dx² - y² और dz², ये है। नाउ दिस इज dxy, dyz और dzx। तो यहाँ पे जब पेयरिंग होगा तो 1 2 3 नाउ 4 5 6 अकॉर्डिंग टू द होन्स रूल। तो यहाँ पे तुम देख रहे थे ना D6 था और स्ट्रॉन्ग फील्ड था, तो ऐसे यहाँ पे पेयरिंग हुआ। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि व्हाट इज द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे राइज हो सकता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा हाइब्रिडाइजेशन तुम कह लो एक हिसाब से जो क्रिस्टल फील्ड का आ रहा है, दैट विल बी इक्वल टू T2G6 और यहाँ पे है EG0। ठीक है, सो दिस इज योर आंसर, बट ये कंप्लीट आंसर नहीं है, बिकॉज अब तुम्हें फाइंड आउट करना है क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, जिसको तुम रिप्रेजेंट करते हो ऐसे डेल्टा O से। ठीक है, तो अब अगर ये पूछे ये कितना है तो तुम कैलकुलेट कैसे करोगे, तो इसे कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला लिख ही लो यहाँ पे। ठीक है, दैट इज डेल्टा O, जो कि है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू -0.4 into number of electrons in T2G। अब इसको तुम्हें ऐड करना है प्लस 0.6 से, और यहाँ पे अगेन तुम्हें लेना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन EG, ये तुम्हें यूज करना है। लेट मी रेज दिस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG। ठीक है,
तो ये तुम्हारा एक फॉर्मूला है जो तुम्हें पता होना चाहिए। तो अब इसे हम देखते हैं कैलकुलेट करके। नाउ -4 × 10 तुम लिख सकते हो, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G कितना है 6 प्लस 6/10 × 0, सो दैट इज इक्वल टू -2.4 डेल्टा O, दैट इज द क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी, सेपरेट करने के लिए एनर्जी। नाउ अगर यहाँ पे क्वेश्चन में एक और दे रखा था कि यहाँ पे पेयरिंग एनर्जी उसकी क्या है, पेयरिंग क्या है, तो तुम देख लो यहाँ पे 3 पेयर है ना टोटल, 1 2 3, ठीक है। तो तुम कह सकते हो +3p। सो दिस वॉज योर कंप्लीट आंसर इन दैट क्वेश्चन। और तुमने जो फॉर्मूला सीखा वो ये था, ठीक है। नाउ तुम सोच रहे हो कि 0.4 0.6 कहाँ से है, तो ये पॉइंट और कुछ नहीं, 0.4 और कुछ नहीं है, 2/5 है। और जो ये 0.6 था वो क्या था, जो एनर्जी जो अबव लेवल जा चुकी थी ना, वो 3/5 ये उसके लिए था। तो ये बस एक सिंप्लीफाइड वे है तुम्हें आंसर फाइंड आउट करने के लिए। तुम्हें फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है एक जो एवरेज था, एवरेज लेवल से जो एनर्जी डाउन गया था डेट वॉज 2/5 किसके लिए, T2G के लिए, और जो अबव गया था वो था 3/5 फॉर EG के लिए। तो तुमने सेम चीज़ किया है, तुमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को काउंट किए हैं और दोनों को ऐड कर दिया है। बस इसके लिए एक तुमने फॉर्मूला यहाँ पे देख लिया, जिसकी वजह से तुम इसको आसानी से सॉल्व कर पाओगे। सो नाउ लेट्स मूव टू द टॉपिक जो हमने देखना था। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर न्यू सब टॉपिक, और वो है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन द टेट्राहाइड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज, यानी कि यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर होने वाले हैं 4। अगेन यहाँ पे तुम्हें ध्यान देना है, पहले इस सब टॉपिक को पढ़ लो। इन टेट्राहाइड्रल सॉरी कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्मेशन, जो डी ऑर्बिटल स्प्लिट कर रहे हैं, इज इन्वर्टेड एंड स्मॉलर एज कंपेयर टू द ऑक्टाहाइड्रल फील्ड स्प्लिटिंग। सो तुम कह सकते हो कि ये है पहली बात इन्वर्टेड एंड स्मॉलर, किससे, ऑक्टाहाइड्रल से। अब तुम इन्वर्टेड इसलिए बोल रहे हो क्योंकि यहाँ पे 2/5 ऊपर जा चुका है, 3/5 नीचे आ चुका है, यहाँ पे T2G ऊपर जा चुका है और EG नीचे आ चुका है। सो नाउ लेट्स रीड for the same metal the same ligands and same metal ligand distance it can be shown by, यहाँ पे डेल्टा T यूज हो रहा है, दैट इज 4/9 ऑफ डेल्टा O क्रिस्टल फील्ड सेपरेशन एनर्जी के। तो तुम्हें इसको हाईलाइट कर लेना चाहिए, बिकॉज ये भी एक PYQ रह चुका है। ओके, सो कीप इन माइंड, इस फॉर्मूले को तुम्हें दिमाग में रखना है। मैं इसको साइड में भी लिख लेता हूँ। डेल्टा T इज इक्वल टू 4/9 delta O. Now the orbital splitting energies are not sufficiently large for forcing pairing and therefore the low spin configuration are rarely absorbed. इसी कारण तो हम बोल रहे थे कि D4 से D7 तक मेनली हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स को कंसिडर करते हैं और वहाँ पे बैक बॉन्डिंग होता है। सो यहाँ पे तुम देख लो, द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंट लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग और लो स्पिन कन्फिग्रेशन आर रेयरली ऑब्जर्व, यानी कि बैक बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं कि बहुत मुश्किल से ऑब्जर्व होता है, क्योंकि खुद सोचो उसको एनर्जी यहाँ पे कंज्यूम करना पड़ेगा ना पेयरिंग के लिए, तो वो क्या करता है, वो इजी नहीं जाना प्रीफर कर देता है। सो देखो यहाँ पे अब जी सबस्क्रिप्ट का यूज हो रहा है, दैट इज यूज फॉर द ऑक्टाहाइड्रल and square planar complexes which gives the center of symmetry. Since the tetrahedral complex lacks symmetry, तो G subscript is not used with the energy levels. Again इसको थोड़ा ठीक से देख लो, मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो G सबस्क्रिप्ट यूज होता है किसके लिए, फॉर द ऑक्टाहाइड्रल एंड द स्क्वायर प्लेनर, बट ये यूज किसके लिए नहीं होता, फॉर द टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स कौन था, sp3 टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स था, इसके लिए जी सबस्क्रिप्ट यूज नहीं होता क्योंकि ये लैक करता है सिमेट्री को। और तुम कह सकते हो यही एक रीजन था लैकिंग ऑफ सिमेट्री, यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी शो नहीं होता। सो दिस इज नॉट यूज्ड एज द सबस्क्रिप्ट फॉर दिस एनर्जी लेवल्स, इसके लिए यूज नहीं होता। तो यू कैन ऑल्सो मार्क दिस जी सबस्क्रिप्ट नॉट यूज्ड फॉर टेट्राहाइड्रल। ओके, नाउ अगर तुम्हारा सेम क्वेश्चन अगर डेल्टा टी कैलकुलेट करने के लिए पूछ देता, ठीक है, तो हमने तो वहां पे डेल्टा ओ के लिए फॉर्मूला देखा था ना, सॉरी, तो हमने क्या देखा था कि वहां पे
जो ऊपर वाला था उसको हमने एडिशन में लिया था और जो नीचे वाला था उसको हमने सब्सट्रैक्शन में लिया था। तो सिमिलर केस हमें यहाँ पे करना है। तो ऊपर वाले एडिशन के लिए हमें क्या करना होगा, 0.4 यानी कि 2/5 इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G। तो हमें ऐड करना होगा -0.6 से, यानी कि वो फाइनली सब्सट्रैक्ट ही हो जाएगा, तुम कह लो -0.6 से, और नंबर -0.6 को मल्टीप्लाई करना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द EG लेवल, तब तुम कैलकुलेट कर सकोगे डेल्टा T। ओके, so let's move to the next next topic, that is 5.5.5, that is the color in the coordination compound, जो कि लैग कर रहा था इन VBT, ये लैग कर रहा था, लैग इन VBT, but it is present in crystal field theory CFT. So we have learned that the most distinctive properties of the transition metal complexes is the wide range of colors, ये शो होता है, और ये इसके पीछे रीजन है कि इनके पास जो ऑक्सीडेशन नंबर्स होते हैं वो भी काफ़ी वेरिएबल होते हैं इन द ट्रांजिशन मेटल। सो दिस मीन्स दैट द सम ऑफ द विजुअल स्पेक्ट्रम इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम द वाइट लाइट एज इट पासेस थ्रू द सैंपल। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्योंकि इसके पीछे का रीज़न यही है कि अगर वो वाइड रेंज ऑफ कलर शो कर रहा है तो जरूर वहाँ से विजुअल स्पेक्ट्रम से जो वाइट लाइट से ना कुछ लाइट्स यहाँ से पास हो चुके हैं, मूव कर चुके हैं। सो द लाइट दैट इमर्जेस नो लॉन्गर वाइट, यानी कि कलर्ड हो चुके हैं। So the color of the complex is complementary to which is observed. The complementary color is the color generated from the wavelength left over. If green light is absorbed by the complex, it appears red. Complex, अब यहाँ पे टेबल 5.3 देख लो, कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटी और कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब। अगर वो लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है येलो कलर का तो शो हो रहा है वायलेट कलर, ठीक है, और यहाँ पे उसके वेवलेंथ्स दे रखे हैं। ओके, तो इसको देख लो यार, यहाँ से अगर क्वेश्चंस क्रिएट हुए तो थोड़े मुश्किल हो जाएंगे, बिकॉज कलर याद रखना इट्स नॉट ईजी। बस एक बार देख लो, बट इस डायग्राम से ज़्यादा ये है कि तुम जो टेक्स्ट में दे रखना है उसको तो कम से कम याद ही कर लो तुम। द कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स इज द कलर जनरेटेड फ्रॉम द वेवलेंथ लेफ्ट ओवर। और यहाँ पे जो हमारा एग्जाम्पल दे रखा है, एग्जाम्पल है जब ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब्ड होगा तो हमें दिखेगा क्या, रेड दिखेगा। तो बस एक इतना तो कम से कम कर लो कि जब ब्लू ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें दिखेगा रेड। ओके, और बाकी तुम सारे क्वेश्चंस को देख लेना। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, सॉरी नेक्स्ट पैराग्राफ। द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैन रीडली एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ द CFT। हमने ऊपर भी देख लिया, लिख लिया था इस टॉपिक के साथ। अब यहाँ पे हमें एग्जाम्पल देखना है। द कॉम्प्लेक्स यहाँ पे जो दे रखा है टाइटेनियम का, तो लेट्स हाईलाइट दिस TiH2O6 which is violet in color. This is an octahedral complex. Of course यहाँ पे 6 ligands हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है वाटर का, एक्वा। सो वेयर अ सिंगल इलेक्ट्रॉन जो होगा Ti3+, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है D1 इन द मेटल d ऑर्बिटल। जब तुम इस T1 की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालोगे +3 ऑक्सीडेशन के लिए, तब तुम्हें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा 3D1 में। सो दिस D1 इलेक्ट्रॉन जो है और वाइटल जो है ये T2G लेवल का है ग्राउंड स्टेट में कॉम्प्लेक्स के। सो जो नेक्स्ट हायर स्टेट अवेलेबल फॉर दिस इलेक्ट्रॉन इज द एम्प्टी EG लेवल, ठीक है। तो इसको तुम हाईलाइट कर लो। इफ द लाइट कोरस्पॉन्डिंग टू द एनर्जी ऑफ द ब्लू ग्रीन रीजन is absorbed by the complex, it would excite the electron from T2G level to the EG level। यानी कि अगर इस कॉम्प्लेक्स ने क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया ब्लू ग्रीन रीजन के लाइट को, तो ये T2G से EG में जाने की क्षमता को रखेगा। यहाँ पे देखो T2G में 1 है, और ये जो फाइनली ग्राउंड स्टेट से जब ऊपर गया हाइब्रिडाइजेशन हो रही है इसकी, तो EG में जा चुका है 1। और ये कॉम्प्लेक्स जो होता है अपेयर होता है वॉयलेट इन कलर, जो कि हम फिगर 5.10 में देख रहे होंगे ऊपर में। सो द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नाउ अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, ये होता है बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो ये इंपॉर्टेंट है, द CFT एट्रीब्यूट्स द कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू द DD ट्रांजिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो अगर तुम्हें कोई कोऑर्डिनेशन एंटिटी मिले, अगर वहाँ पे पूछे कि चेंज इन कलर किसकी वजह से होता है, तो तुम कह सकते हो कि DD ट्रांजिशन की वजह से होता है। ओके, तो अब जो हमारे एग्जाम्पल्स हैं, उस जो टेक्स्ट में दे रखा है उसको तो कम से कम तुम्हें याद रखना होगा।
पहला जो हमें याद रखना था, अगर ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब हुआ तो वो दिखेगा अपेयर रेड, बिकॉज चांसेस तो नहीं होते इस टाइप के क्वेश्चन अराइज होने का, बट अगर अराइज होते हैं तो कम से कम तुम्हें टेक्स्ट में जो दे रखा है वो तुम्हें पता होना चाहिए, ठीक है। स्टार मार्क्स हटाना होगा। ठीक है, अपेयर रेड होते हैं। नाउ जो हमारा सेकेंड एग्जाम्पल था वो था हमारा TiH2O6 के लिए, जिसपे था +3। तो ये हमारा जो था ना कलर ऑब्जॉर्ब जो कर रहा था, ये ब्लू ग्रीन को एब्जॉर्ब कर रहा था, ब्लू ग्रीन एब्जॉर्ब, इसकी वजह से जो T2G में एक इलेक्ट्रॉन था Pg0 में वो चला जा रहा था Pg में, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जा रहा था। और तुम कह सकते हो जो ये ब्लू ग्रीन जो एब्जॉर्ब हो रहा था, इससे हमें जो कलर विजिबल हो रहा था वो हो रहा था वायलेट कलर। और ये सब के पीछे रीजन क्या है, TD ट्रांजिशन। सो ऑलवेज कीप इन माइंड ये कैसे जो टेक्स्ट में जो एक एक वर्ड्स हैं तुम्हें याद रहने चाहिए, बिकॉज वी कांट टेक द रिस्क, कहीं से भी क्वेश्चन कुछ भी अराइज हो सकते हैं। सो वी आर गोइंग थ्रू द सिंगल वर्ड, एक एक क्वेश्चन के साथ जा रहे हैं। ऑल्सो जो कुछ PYQs हैं जो कि आउट ऑफ द ट्रैक थे NCERT से, जैसे कि कुछ फॉर्मूलाज जो डायरेक्टली में दिखते तो नहीं है बट उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो क्रिएट हो रहे थे, हमने उसको भी फाइंड आउट करा, हमने उसको भी लिखा है। ये डेल्टा T के लिए और डेल्टा O के लिए हमने लिखा था। ना अगर तुमने डेल्टा O को फाइंड कर लिया, क्वेश्चन पूछ रहा है कि डेल्टा T का बता दो, तो जस्ट उसको 4/9 से मल्टीप्लाई कर देना, तुम्हारा आंसर मिल जाएगा। तो तुम्हारे पास सारे तरीके हैं सॉल्व करने के। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पेज। अब यहाँ पे हम देखते हैं अबाउट द वही कलर के बारे में। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द एब्सेंस ऑफ लिगेंड क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डज नॉट अकर एंड हेंस द सब्सटेंस इज कलरलेस। ठीक है, तो इसको तुम कर लो हाईलाइट। हाईलाइट क्या करोगे, अगर है लाइगेंड एब्सेंट तो CFT नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं करेगा, और वो सब्सटेंस जो है वो रह जाएगा कलरलेस। सो फॉर एग्जांपल रिमूवल ऑफ वाटर, अगर यहाँ पे तुम्हारा जो है वाटर तुम रिमूव करते हो हीट करने से तो वो कलरलेस हो जाएगा, बिकॉज उसका जो लाइगेंड है वाटर वो तो इवापोरेट कर जाएगा, तुम ऐसा कह सकते हो ना। तो अब यहाँ पे देखो सिमिलर एनहाइड्रस CuSO4 इज वाइट बट CuSO4.5 वाटर इज ब्लू इन कलर। तो तुम यहाँ पे इसको मार्क कर लो, CuSO4 इज वाइट, बिकॉज हम रिस्क नहीं ले सकते, जो भी कलर्स जो दे रखे हैं टेक्स्ट में वो हमें पता होने चाहिए। ब्लू, फिर जो TiH2O का जो दे रखा था एग्जाम्पल, वो था सॉरी, अगर तुमने इसको हीट कर दिया तो वो हो जा रहा था कलरलेस। और ये जो कलर हमने बैक साइड में देखा था, ये कलर कौन सा था, इसका कलर जो था दैट वाज वायलेट। सो ये रहा सेकेंड पॉइंट, ये रहा थर्ड पॉइंट। ओके, अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाले स्टेटमेंट को अपने। द इन्फ्लुएंस ऑफ द लाइगेंड ऑन द कलर कॉम्प्लेक्स मे बी इलस्ट्रेटेड बाय द कंसीडरिंग, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स का, विच फॉर्म्स व्हेन द निकल 2 क्लोराइड इज डिसॉल्व्ड इन वाटर। सो इफ द didentate ligand ethane 1,2-diamine is progressive added to the molar ratio। अब यहाँ पे जो निकल और इथेन 1,2-diamine का मोलार रेशियो यहाँ पे 3 दे रखा है, तो यहाँ पे कुछ रिएक्शंस होते हैं और देखो यहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे होते हैं। तो ये वो कॉम्प्लेक्स है जो कि होता है ग्रीन, तो इसको तुम लिख ही लो। दिस इज ग्रीन, और जब ये इथेन 1,2-diamine से 1:1 रेशियो में अगर ये रिएक्ट करता है तो हमें मिलता है पेल ब्लू। कीप इन माइंड पेल ब्लू। नाउ जब ये 2:1 की रेशियो में रिएक्ट होता है तो हमें मिलता है ब्लू कलर या पर्पल कलर, और जब ये 3:1 की रेशियो में होता है तो हमें मिलता है वॉयलेट कलर। तो हमें इन तीनों कलर्स को वापस से अच्छे से याद रखना है।
अब इसको तुम रट्टा ही मान लो, वहीं ठीक है। अगर 4 वाटर के लिगेंड है और 2 इथेन 1 2 डायमंड के लिगेंड है तो यहाँ पे पेन ब्लू कलर है। और अगर 2:1 का रेशियो है दोनों के बीच में तो यहाँ पे ब्लू या पर्पल है, और 3:1 का रेशियो है तो हमें जो कंपाउंड मिल रहा है जहाँ पे डाइडेंटेड लिगेंड यूज हो रहे हैं यहाँ पे वो वायलेट है। तो बस इस चीज़ को ध्यान में रख लो। तो हमारे पास टोटल कलर्स कितने हो गए याद रखने को, यहाँ पे हो गए हमारे पास 3 कलर, 4 कलर, 5 6 7, तो हमारे पास यहाँ पे 7 कलर्स हैं टू रिमेंबर, जिसको तुम्हें याद रखना है। ओके, ये पेल ब्लू से हो रहा है पर्पल और पर्पल से हो रहा है वॉयलेट। नाउ कीप इन माइंड यहाँ पे डायग्राम भी इसने यूज कर रखा है, ये है ग्रीन कलर में बिफोर रिएक्टिंग, एंड नाउ यहाँ पे जब ये रिएक्ट कर रखा तो यहाँ पे ये किस कलर में हो चुका था, पेल ब्लू था नहीं है, हाँ पेल ब्लू कलर में हो चुका था। फिर जब इसने रिएक्ट करा इन द रेशियो 1:2 के, 1:2 के, तो ये जो कलर हमारा आ गया था दैट वॉज ब्लू और पर्पल। फिर जो हमारे पास लास्ट बचा 3:1 के, जब इसने रेशियो में रिएक्ट करा सो दिस वॉज वायलेट। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और तुम्हें ये याद रहना चाहिए। नाउ कलर ऑफ द जेमस्टोन, नाउ दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज यहाँ से 2 टाइम्स PYQ में जेई के क्वेश्चन राइज हो चुका है। तो अगर ये जेई में क्वेश्चन यहाँ से 2 बार आ चुके हैं तो इट इज़ नॉट हार्ड कि यहाँ से नीट में भी क्वेश्चन राइज हो सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट रीड दिस, द कलर प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन विद इन द डी ऑर्बिटल ऑफ द ट्रांजिशन मेटल आयन फ्रीक्वेंटली इन एवरीडे लाइफ। तो यहाँ पे हमारे पास रूबी का एक एग्जाम्पल है, रूबी। तो रूबी होता है इज द एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 है ये, कंटेनिंग अबाउट, अब यहाँ पे जो होता है ये कंटेन क्या करता है, 0.5 to 1% क्रोमियम 3+ आयन होता है इसके पास। तो अगर ये क्रोमियम 3+ आयन है तो यानी कि तुम कह सकते हो ये D3 कंडीशन में है, विच आर रेंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड इन पोजिशंस नॉर्मली ऑक्यूपाइड बाई अल्यूमिनियम। So we may view this chromium 3 species as the octahedral chromium 3 complex। तो तुम कह सकते हो इस जो D3 को हमने क्या बोल दिया, octahedral, सॉरी, chromium 3 complex। नाउ ये जो होता है इनकॉर्पोरेटेड इनटू द एल्यूमिना लटाइस। नाउ दिस इज द DD ट्रांजिशन एट दिस सेंटर्स गिव्स द राइज ऑफ द कलर। अगेन यहाँ पे जो कलर है, कलर ड्यू टू DD ट्रांजिशन, ओके। सो ये टोटल था अबाउट द रूबी। और यहाँ से जो क्वेश्चन था जो जेई एग्जाम में था, पहला क्वेश्चन तो था वो एल्यूमिनियम का जो Al2O3 था, यानी कि ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, ठीक है। और जो दूसरा क्वेश्चन था उसने रूबी और इमराल्ड जो नेक्स्ट पेज में दे रखा है उसको दोनों को मर्ज किया था और उसमें पूछा था कि उसमें कौन से कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो वहाँ पे दोनों का आंसर क्रोमियम था बिकॉज इमराल्ड में भी क्रोमियम होता है, ओके। और यहाँ पे जो कलर है दैट इज बिकॉज ऑफ द DD ट्रांजिशन एंड द ऑक्टाहाइड्रल क्रोमियम 3 का ये इसका जो कंपाउंड क्रिएट होता है वो है, ठीक है। सो लेट्स सी द इमराल्ड, यहाँ पे भी क्रोमियम होता है, आयन ऑक्यूपाइड ऑक्टाहाइड्रल साइट्स इन द मिनरल। अब यहाँ पे मिनरल है, देखो इमराल्ड जो है वो है Be3, ये एल्युमिनियम का है 2, सिलिकॉन है 6 और ऑक्सीजन है 18। सो कीप इन माइंड यहाँ पे जो डिफरेंट नंबर्स हैं लाइक बेरियम है 2 Be, एल्यूमिनियम 2, सिलिकॉन 6, ऑक्सीजन 18। सो यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन बैंड सीन इन द रूबी शिफ्ट्स टू द लॉन्गर वेवलेंथ नेमिंग येलो रेड एंड ब्लू कॉजिंग एमराल्ड टू ट्रांजिट द लाइट इन द ग्रीन रीजन। और जो एमराल्ड का जो लाइट होता है ये ग्रीन रीजन में होता है, ग्रीन। सो यहाँ पे देख सकते हो दिस इज एमराल्ड एंड दिस इज रूबी। ये रूबी फाउंड किया गया था मोगोक, एंड नाउ दिस जेमस्टोन वाज फाउंड इन द मोजो कोलंबिया। सो बस इतना ही याद रख लो। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो जेई में था, जो सेकेंड टाइम जो जेई में क्वेश्चन था दैट वाज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स होता है ना 3+, ये पाया जाता है इन रूबी ऑल्सो एंड इन एमराल्ड ऑल्सो, ओके।
नाउ यहाँ पे जो एब्जॉर्प्शन बैंड है रूबी में वो शिफ्ट हो जाता है लॉन्गर वेवलेंथ में, और येलो रेड एंड ब्लू कॉजिंग इमरल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि ये शिफ्ट टू लॉन्गर वेवलेंथ, बस यही टर्म को यूज कर लो, हो गया। बाकी अगर स्टेटमेंट क्रिएट होता है तो तुम इसको सही कर सकते हो। नाउ द लिमिटेशन ऑफ द CFT, जैसे कि हमने VVT के कुछ लिमिटेशंस को देखे थे। सो आफ्टर क्लियरिंग ऑल दैट, सॉरी मेजरली ऑल दैट लिमिटेशंस को तुम हटाने के बाद VVT के अगेन यहाँ पे CFT में भी कुछ लिमिटेशंस रह जाते हैं। सो लेट्स सी दिस। द क्रिस्टल फील्ड मॉडल इज सक्सेसफुली एक्सप्लेनिंग द फॉर्मेशन, स्ट्रक्चर, कलर, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टू अ लार्ज एक्सटेंट। ओके, ये एक्सप्लेन कर रहा है। However, from the assumptions that the ligands are point charges, it follows the anionic ligand should exert the greatest splitting effect. तो ये इसका प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने यहाँ पे तो assumption ले लिया था ना, जो हमारे ligands होते हैं, जो point charge होते हैं, वो anionic ligands होते हैं, वो exert करते हैं greatest splitting effect. Now the anionic ligands actually are found at the low end of the spectrochemical series. इसको तुम हाईलाइट करो। एनायनिक लिगेंड्स एक्चुअली फाउंड एट द लो एंड्स इन द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अब उसको हम देखते हैं लो एंड्स में कैसे फाउंड आउट होते थे। ये रहा, अब ये रहे वो एनायनिक लिगेंड्स। अब देखो, ये तो खुद ही लो एंड में पाए जा रहे हैं एनायनिक लिगेंड्स। ओके, फर्दर इट डज नॉट टेक इनटू अकाउंट द कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ बॉन्डिंग। तो यहाँ पे एक और पॉइंट मिला, not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central metal ion. There are some of the weakness of CFT which are explained by the LFT, but हमें यहाँ पे LFT को देखना नहीं है। तो जो weakness of CFT है वो explain होता है LFT and MOT के द्वारा, so which is beyond the scope of the present study, so we are not going to do this topics because it is not present in our syllabus. Okay, तो हमें यहाँ पे जो problems मिले थे CFT के वो था नॉट कंसिडर कोवेलेंट, बस इतना ही लिख लो। अब ये कोवेलेंट कैरेक्टर को नहीं मानता था बिटवीन द लिगेंड्स एंड द मेटल आयंस, जो थे उनके बीच में नहीं फाउंड आउट होता था। फिर जो एक और CFT का जो लिमिटेशन था वो था एनायनिक से रिलेटेड, ठीक है, क्योंकि एनायनिक को इसने बोला था कि ये ग्रेटेस्ट इफेक्ट पॉइंट चार्जेस की वजह से ग्रेटेस्ट स्प्लिटिंग इफेक्ट देते हैं, बट अकॉर्डिंग टू द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड थे, वहां पे हमें ये पता चला कि ये तो खुद ही पीछे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, तो कैसे ग्रेटेस्ट दे सकते हैं। सो ये वो पॉइंट था। सो ये तुम्हें दोनों पता होना चाहिए। नाउ द बॉन्डिंग इन द मेटल कार्बोनाइल्स। सो फर्स्ट रीड दिस, उसके बाद मैं इसको समराइज कर दूंगा। सो द हेमोलैप्टिक कार्बोनाइल्स कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बोनाइल लिगेंड्स, यानी कि सिर्फ CO के लिगेंड्स होंगे और यहाँ पे दूसरा कोई लिगेंड्स नहीं होगा कोऑर्डिनेशन एंटिटी में। सो these are formed by most of the transition metals. These carbonyls have simple well defined structures. तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, पहले हम लिख लेते हैं हेमोलैप्टिक कार्बोनाइल्स के बारे में। ओनली कार्बोनाइल लिगेंड्स होते थे यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ट्रांजिशन मेटल इसको शो करना चाहते थे, शो करते भी थे। वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर था इनके पास। और इसका जो एग्जाम्पल है टेट्रा कार्बोनाइल निकल, जीरो ऑक्सीडेशन था सेंट्रल मेटल आयन का, और वो था टेट्राहाइड्रल। फिर हमने देखा था पेंटा कार्बोनाइल आयरन, जिसका भी अगेन जीरो था, और इसका था ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो यहाँ पे जो तीनों एग्जांपल्स है ना, इसको मैं लिख लेता हूँ, तो इट विल बी वे बेटर फॉर यू। चलो, ये नेक्स्ट पेज में दे रखा है तो मैं यहाँ पे नहीं ड्रॉ करता बिकॉज वो काफ़ी हॉच पॉच हो जाएगा। नाउ यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, पहले हम डायग्राम्स को देखते हैं, फिर डायग्राम्स को एक्सप्लेन करते हैं, वापस आके इस टॉपिक को देखते हैं, तब ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। तो यहाँ पे जो है दैट इज द NiCO4। यहाँ पे जो CO है ये हाईएस्ट होता है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, और ये बैक बॉन्डिंग को प्रीफर करता है CO, और इसका जो न्यूट्रल होता है, ये चार्ज इसका जीरो होता है। सो वी कैन से दैट कि इन दिस कंडीशन जो निकल का ऑक्सीडेशन नंबर है दैट इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है निकल का, यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो है, यहाँ पे कार्बोनाइल का ऑक्सीडेशन नंबर कह सकते हो जीरो है, अगेन यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, यहाँ पे Mn का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। सो अब हम इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, और इससे भी अगेन मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इवन इन द नीट एग्जामिनेशन एज वेल एज इन JEE का, तो ये फेवरेट टॉपिक है।
तो अगर जेई में पूछा जा रहा है तो नीट में भी पूछा जा सकता है, बिकॉज दे बोथ हैव द सेम बॉडी हु आर टेकिंग देयर एग्जाम एंड ऑल्सो सेम सिलेबस। तो पहले देखो ये टेट्राहाइड्रल है, टेट्राहाइड्रल यानी कि sp3, इसके लिए NiCO4 के लिए, फिर FeCO5 के लिए ये है Tb, याद कर लो ये Tb, दैट इज द ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और ये है FeCO5 यानी कि ये 5 कार्बोनाइल ग्रुप्स हैं यहाँ पे। नाउ जो नेक्स्ट वाला है, यहाँ पे देखो कार्बोनाइल ग्रुप्स टोटल हैं 8, ठीक है। और तुम इस चीज़ को यहाँ पे एक नोटिस कर लो कि यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए थे एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन था फर्स्ट वाला जो CO ब्रिज कितने थे बिटवीन 2 CO ग्रुप्स, ब्रिज कितने हैं बिटवीन 2 CO ग्रुप। तो इसे कैलकुलेट करो। सपोज करो कि ये है अपना CO ग्रुप, तो ये अपना CO ग्रुप है, ये अपना एक CO ग्रुप है, फिर ये अपना एक CO ग्रुप है, फिर अपना ये एक CO ग्रुप है। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे ब्रिज कितने हैं। यहाँ पे पहला ब्रिज रहा ये, दूसरा ब्रिज, तीसरा ब्रिज, चौथा ब्रिज, और ये है मेन ब्रिज CO के बीच में। तो मतलब ये चारों एक दूसरे को कनेक्ट कर रहे हैं। तो समझ रहे हो ना, 1 2 3 4 5। तो तुम कह सकते हो यहाँ पे 5 हैं जो CO को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये इससे क्वेश्चन था, ये जेई का था, ठीक है। ये जो ब्रिज है ना, सपोज करो ये तो हमने ब्रिज बोल दिया 5, बट एक्चुअल में ब्रिज हम एक ही कंसिडर करेंगे, ये जो मिडल वाला है, ठीक है। बिकॉज तुम कह सकते हो ये तो कनेक्टिंग है, बट ये जो ब्रिज है जो दोनों के बीच में जो कनेक्शन क्रिएट कर रहा है, ये सेंटर वाला है। बट जब तुम्हारा उस टाइप से क्वेश्चन पूछे, मुझे एक्जैक्टली क्वेश्चन नहीं याद है, बस मुझे ये याद है कि एक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था। तो वी कैन से दैट कि तुम्हें स्ट्रक्चर पता होना चाहिए था। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर पता होगा सो यू कैन सॉल्व दिस वेरी इजली। नाउ अब तुम यहाँ पे देखो, जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है ये है अपना ऑक्टाहाइड्रल, ओके। तो अगर ये ऑक्टाहाइड्रल है तो तुम देख लो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है। बहुत ही जनरल और नॉर्मल से स्ट्रक्चर है, जैसा कि नॉर्मली ऑक्टाहाइड्रल के होते हैं। नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इसके क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं जेई एग्जाम्स में ऑल्सो। और वो क्वेश्चंस ये थे कि यहाँ पे जो Mn था, मैंगनीज था, उसका इसने हाइब्रिडाइजेशन पूछा था कि वो कौन से हैं, ठीक है। तो वो थे स्क्वायर पिरामिडल। तो यहाँ पे जो दोनों Mn है, Mn जो है वो ये वाला Mn हो या ये वाला Mn हो, दोनों है स्क्वायर पिरामिडल, ओके। एंड ऑल्सो इसका जो कॉज है ऑर्गेनोमेटेलिक नेचर का, वो ये है Mn, और ये जो CO है ना, ये है कॉज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक। यहाँ पे लिख लो कॉज ऑफ ऑर्गेनोमेटेलिक। अब इसको हम देखते हैं कैसे इसको है। पहले हम पूरी स्टेटमेंट को इसके पढ़ लेते हैं, हमने डायग्राम्स को तो देख लिया। नाउ रीड दिस। यहाँ पे जो डेका कार्बोनाइल डाई मैंगनीज ओ है, इट इज मेड अप ऑफ 2 स्क्वायर पिरामिडल, जो कि हमने देखा है। नाउ MnCO5 यूनिट है, ये ज्वाइंट होता है MnMn बॉन्ड से। नाउ यहाँ पे जो ऑक्टा कार्बोनाइल कोबैल्ट है, यहाँ पे भी 0 है, और यहाँ पे CO बॉन्ड ब्रिज है बाय 2 CO ग्रुप्स। ये है वो बॉन्ड ब्रिज बाय द 2 CO ग्रुप्स, ओके। नाउ पहले हम इसको रीड करते हैं, फिर इस डायग्राम के साथ हम इसको एक्सप्लेन करेंगे ये कैसे है। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनाइल पोजेसेस बोथ सिग्मा एंड द पाई कैरेक्टर। द मेटल कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसको हाईलाइट कर लो। ये जो MC सिग्मा बॉन्ड है, दिस इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। नाउ जो तुम्हारा जो सिग्मा बॉन्ड है MC सिग्मा, दिस इज फॉर्म्ड बाय द डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फिल्ड d ऑर्बिटल ऑफ मेटल इनटू द वैकेंट एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। नाउ द मेटल to ligand bonding creates a synergetic effect which strengthens the bond between the CO and the metal. So this is also important statement. The metal ligand bonding creates the synergetic effect. अब वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है कि वो किस टाइप के इफेक्ट को क्रिएट करता है, तो तुम्हें पता होना चाहिए वो इफेक्ट है synergetic effect. So which strengthens the bond between CO और metal, इस दोनों के बॉन्ड को ये इंक्रीज कर देता है। तो अब इस हम डायग्राम को देखते हैं और डायग्राम को हम समझते हैं।
तो यहाँ पे जो सिग्मा सॉरी पाई बॉन्ड जो क्रिएट हो रहे हैं, तुम्हें ये पता होने चाहिए ये कैसे क्रिएट हो रहे थे। हमने इसको टेक्स्ट में पढ़ा था ना। ये क्रिएट हो रहे थे बिकॉज ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था वो डोनेट हो रहा था फील्ड डी और बाइटल से, किसके पास, एंटी बॉन्डिंग वैकेंट एंटी बॉन्डिंग के पास। सो यहाँ पे लिख लो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फील्ड डी और बाइटल टू सिग्मा स्टार, यानी कि तुम एंटी बॉन्डिंग समझ लेना इससे। एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार और बाइटल में यहाँ पे जब जा रहा था तब यहाँ पे ये, सॉरी दूसरा कलर यूज करने दो मुझे, तब ये पाई बॉन्ड क्रिएट हो रहा था। तो तुम इसको समझ लो। अब यहाँ पे जो ये सिग्मा बॉन्ड है, अब ये कैसे क्रिएट हो रहा था, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होने के लिए भी अगेन सेम कंडीशन था, बट यहाँ पे जो था डोनेशन ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो था, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो कहाँ से हो रहा था, फ्रॉम द कार्बोनाइल कार्बन इनटू द वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ मेटल। कार्बोनाइल कार्बन टू वैकेंट डी, सॉरी वैकेंट मेटल ऑर्बिटल था ना, वैकेंट ऑर्बिटल ऑफ द मेटल। तो तुम इसको समझ लेना। नाउ यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है ना वो है इसके एरो। यहाँ पे देखो, तो ये है मेटल और ये है अपने कार्बोनाइल वाले। तो जो सिग्मा बॉन्डिंग है उसकी जो एरो है कुछ ऐसे है, देख लो यहाँ पे। बिकॉज ये कार्बन का जो फील्ड है ना सीओ ग्रुप का, जो कार्बोनाइल ग्रुप का, यहाँ से वो, ये देखो ये रहा वो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफर हो रहा है वैकेंट मेटल में, ठीक है। और जो सिग्मा सॉरी जो पाई बॉन्डिंग क्रिएट हो रहा था वो इस फील्ड वाले पोर्शन से, जहाँ पे डी ऑर्बिटल जो फील्ड था वो ट्रांसफर हो रहा है टुवर्ड्स द वैकेंट ऑर्बिटल, जो कि है पाई स्टार सिग्मा एंटी बॉन्डिंग की, ठीक है। तो इन चीजों को तुम्हें ध्यान देना है। और यहाँ पे हो रहा है क्रिएट सिनर्जिक बॉन्डिंग, और इसकी वजह से स्ट्रेंथ आता है मेटल और कार्बोनाइल के बॉन्डिंग्स में। क्योंकि जो सिनर्जिक बॉन्डिंग है वो क्रिएट कैसे हो रहे हैं, मेटल टू लाइगेंड बॉन्डिंग क्रिएट्स अ सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो जो मेटल है तुम्हारा एम है, जो लाइगेंड है वो तुम्हारा कार्बोनाइल ग्रुप है, तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो सिग्मा और पाई के, तो इनकी वजह से वो सिनर्जिक बॉन्डिंग क्रिएट हो रहे थे। तो तुम्हें जो इंपॉर्टेंट पोर्शन जो तुम्हें समझना था जहाँ से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है वो था कि पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन सिग्मा के लिए ट्रांसफर हो रहे थे कार्बोनाइल कार्बन से वैकेंट मेटल के ऑर्बिटल के पास, और जो तुम्हारा ये जो पाई बॉन्ड था वो क्रिएट हो रहा था पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फील्ड डी ऑर्बिटल जो कि ये रहा, यहाँ से वो ट्रांसफर हो रहा था एंटी बॉन्डिंग, और एंटी बॉन्डिंग किसका था, कार्बोनाइल ग्रुप का था। तो बस हो गया। नाउ इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो बस मैं हाईलाइट कर देता हूँ उसको, बिकॉज ये तो रट्टा मारने वाला टॉपिक है। द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर द ग्रेट इंपॉर्टेंस। द कोऑर्डिनेशन आर वाइडली द कंपाउंड्स आर वाइडली प्रेजेंट इन द मिनरल प्लांट एनिमल वर्ल्ड्स, और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हर एरिया में इनका, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, मेटलर्जी में, बायोलॉजिकल सिस्टम में, इंडस्ट्री में, मेडिसिन में, हर जगह इनका हम काम देख सकते हैं। सो ये बस एक इंट्रोडक्टरी पार्ट है। अब हम देखते हैं, हमने ये जो इंट्रोडक्टरी पार्ट देखा उससे रिलेटेड इनके वर्क्स क्या है। तो ये जो अपना फर्स्ट पॉइंट है, दैट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड फाउंड यूज इन मेनी क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव यानी कि क्वालिटी से भी बेस्ड और क्वांटिटी से भी बेस्ड केमिकल एनालिसिस में इनका काम होता है। और ये फैमिलियर कलर रिएक्शन देते हैं विद द मेटल आयंस विद द नंबर ऑफ लाइगेंड्स स्पेशली द चिलेटिंग लाइगेंड्स, ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। और यही बेसिस होता है फॉर द डिटेक्शन ऑफ एस्टिमेशन ऑफ क्लासिकल इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस। तभी तो कलर से पता चल जाता है। तो हमने ये देखा जो ये कलर रिएक्शन हो रहा था बाय द मेटल आयंस विद द नंबर ऑफ लाइगेंड्स, और वो लाइगेंड्स स्पेशली किसके होने चाहिए तो अच्छा रहेगा, चिलेटिंग लीजेंड्स के, ठीक है, यानी कि डेंटिसिटी बेस्ड होना चाहिए, एम्बीडेंडेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे जो एग्जांपल है सच रिएजेंट इंक्लूड्स EDTA जो कि पॉलीडेंटेड हेक्साडेंटेड है, DMG एग्जांपल है दैट इज द डाइमिथाइल ग्लॉक्सिम, यहाँ पे अल्फा नाइट्रोसो, बीटा नाइफ्थेनॉल और क्यूप्रॉन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि केमिकल एनालिसिस में हेल्प कर रहे होते हैं। सो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट
बिकॉज यहाँ पे जो क्यूप्रॉन है और ये जो एग्जाम्पल्स जो अदर जो तुमने नहीं सुने हैं, ठीक है, तो इसको कर लो हाईलाइट। केमिकल एनालिसिस में जो हेल्प कर रहा है वो है अपने EDTA, DMG, अल्फा नाइट्रोसो बीटो नाइट्रोफिन बीटा नेप्थेनॉल एंड क्यूप्रॉन। नाउ ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर से भी रिलेट करते हैं, सो लेट्स सी दिस। हार्डनेस ऑफ वाटर इज एस्टिमेटेड बाय द सिंपल टाइट्रेशन, और ये टाइट्रेशन में हेल्प करता है Na2EDTA। यहाँ पे भी EDTA का मेन रोल है। नाउ यहाँ पे जो कैल्शियम और मैग्नीशियम के आयंस होते हैं फॉर्म्स द स्टेबल कॉम्प्लेक्स विद द EDTA। सपोज करो कि तुमने सोडियम के साथ EDTA को लिया था, बट जब तुमने रिएक्ट करा तो यहाँ पे कैल्शियम और मैग्नीशियम जो थे उन्होंने एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स प्रिपेयर करा EDTA के साथ। Now, the selective estimation of these ions can be done due to the difference in the stability of the constant of calcium and the magnesium complex। तो बस तुम्हें याद रखना है कि यहाँ पे एक स्टेबल आयंस क्रिएट करते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम वाले, इसके साथ विद EDTA, ठीक है। नाउ जो थर्ड पॉइंट है, सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शन प्रोसेस मेटल्स लाइक दोज ऑफ, देखो ये एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प कर रहे हैं सिल्वर के, गोल्ड के, और ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में भी वर्क करते हैं। कौन? ये जो अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। नाउ जो यहाँ पे गोल्ड है, तो गोल्ड का जिसने एग्जांपल को इसने फर्दर क्लासिफाई करा है, गोल्ड फॉर एग्जांपल कॉम्बाइंस विद द साइनाइड CN इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर टू फॉर्म द कोऑर्डिनेशन एंटिटी, और ये रहा वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी in the aqueous solution। Now gold can be separated in the metallic form and this solution by the addition of zinc। So this is very much important क्योंकि यहाँ पे एक पूरा रिएक्शन दे रखा है, तो हम इसको ऐसे यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं बिकॉज दिस इज इम्पॉर्टेंट और कुछ इंपॉर्टेंट छूटा नहीं चाहिए हमसे। तो सपोज करो कि ये स्टार हटाओ यार, बिकॉज स्टार मैं वहीं पे लगाता हूँ जो कि मेरे लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो वहाँ पे मैं स्टार लगाता हूँ तो वो सेव हो जाता है। तो जब मैं सर्च करूँगा ना यहाँ से स्टार मार्क्स, तो जो भी स्टार वाले होते हैं पॉइंट्स वो मुझे डायरेक्टली मिल जाते हैं। तो इसलिए मैं हर जगह स्टार नहीं लगाता और मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो हम थे इस टॉपिक पे और ये लेक्चर काफ़ी लंबी हो चुकी है, मतलब 2 घंटे से ऊपर ही जा चुके होंगे ना, हो गई है 2 घंटे की। ना यहाँ पे देखो जो तुमने गोल्ड है दैट इज AU, इसको तुमने डाला कंबाइन किया CN के साथ, और ये जो CN है वो लाइगेंट है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन एंटिटी जो क्रिएट हुआ वो कोऑर्डिनेशन एंटिटी है AuCN2 और यहाँ पे माइनस। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसी क्या है गोल्ड की, तो प्राइमरी वैलेंसी है +1 AU की, और यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी है 2 बिकॉज यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर है 2। नाउ ये एक्वस सॉल्यूशन के केस में है, एक्वस में है ये। ऑल्सो यहाँ पे गोल्ड को सेपरेट किया जा सकता है मेटेलिक फॉर्म में, जब इसमें सॉल्यूशन में तुम ऐड करोगे जिंक को, तो जिंक एडेड देन प्रेसिपिटेट मेटल AU कह सकते हो तुम, बस जनरली जैसे तुम्हें याद रह सके इस टॉपिक के बारे में अच्छे से, बिकॉज अगर किसी रिएक्शन को मैं टेक्स्ट में बता दूं तो तुम भूल जाओगे उसे, और अगर ये रिएक्शन है तो ये वेरी मच इंपॉर्टेंट है। Similarly, the purification of metal can be achieved through the formation of the subsequent decomposition of their coordination compound। Okay, for example, जो impure nickel होता है is converted into the carbonyl compound का coordination entity और ये decompose होता है तो हमें pure nickel मिल जाता है। Now the fifth point, coordination compound are of the great importance in the biological system। The pigment responsible for photosynthesis यानी कि जो मैग्नीशियम है वहाँ पे क्लोरोफिल में पाए जाते हैं, तो मैग्नीशियम यहाँ पे दे रखा। हेमोग्लोबिन में Fe2+ होता है, 3+ से कंफ्यूज मत होना, Fe2+ होता है क्योंकि हेमोग्लोबिन पिगमेंट है ब्लड का और जो ऑक्सीजन कैरियर की तरह वर्क करता है यानी कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। नाउ अब यहाँ पे विटामिन B12 के बारे में दे रखा, और विटामिन B12 जिसको हम बोलते हैं साइनोकोबैलमाइन, और ये बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर में हम दोबारा देखने वाले हैं। सो यहाँ पे होता है एंटी परनीसियस अमीनिया फैक्टर, और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारा वो है कोबाल्ट CO। सो अमॉन्ग द अदर कंपाउंड्स ऑफ द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस विद द कोऑर्डिनेशन मेटल आयंस आर द एंजाइम्स लाइक द कार्बोक्सी पेप्टाइडेज A
एंड द कार्बोनिक एनहाइड्रेट्स जो कि H2CO3 और CO2 वाटर, इनमें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो हमने इस चैप्टर में देखा है बायोलॉजी में। सो इफ़ यू डोंट नो, मेरे चैनल पे प्रेजेंट है बायोलॉजी के लेक्चर जो मैंने ऐसे ही पढ़ाया है। ओके, सो यू कैन गो एंड वॉच। और ये आई थिंक ब्रीदिंग वाले चैप्टर का है। सो वी हैव कंप्लीटेड दैट। ब्रीदिंग हमने कैलकुलेट कर रखा है, सर्कुलेशन में कैलकुलेट कर रखा है, ठीक है, सर्कुलेशन में ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है, तो वहाँ पे भी हमने सब देख रखा है। नाउ द फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है, दैट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर द यूज्ड एज द कैटलिस्ट फॉर मेनी इंडस्ट्रियल प्रोसेस। अब यहाँ पे एग्जांपल यूज होता है रोडियम कॉम्प्लेक्स का। नाउ दिस इज द रोडियम कॉम्प्लेक्स। और नाउ यहाँ पे जो फॉस्फीन है ना, ट्राइफेनाइल फॉस्फीन, यहाँ पे ये होता है न्यूट्रल, कीप इन माइंड न्यूट्रल होता है। सो विल्किंसन कैटलिस्ट इज यूज्ड फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ENE। तो तुम इसको कर लो हाईलाइट। विल्किंसन कैटलिस्ट यूज फॉर द हाइड्रोजिनेशन ऑफ ENE। एंड ऑल्सो यहाँ पे हमने रोडियम कॉम्प्लेक्स का एक एग्जाम्पल देखा जो कि इंडस्ट्रियल प्रोसेस में यूज होता है। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विद सिल्वर हो या गोल्ड मच मोर स्मूथली, आसान तरीके से, इवनली फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स। और वहाँ पे हम यूज करते हैं इस कॉम्प्लेक्स को सिल्वर से। तो देखो ये क्रिएट हुआ और यहाँ पे ये क्रिएट हुआ। अगेन इन दोनों का जो प्राइमरी वैलेंसी होगा दैट विल बी 1 एंड देन फॉर्म द सॉल्यूशन ऑफ अ सिंपल मेटल आयन। सो बस इसको याद रख लो कि ये रहा हमारा Ag के लिए और ये रहा हमारा गोल्ड के लिए। सो इन ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी डेवलप्ड फिल्म इज फिक्स्ड बाय द वॉशिंग विद द हाइपो सॉल्यूशन which dissolves the undecomposed AgBr, ओके, सिल्वर ब्रोमाइड टू फॉर्म द कॉम्प्लेक्स आयन। और ये रहा कॉम्प्लेक्स आयन। तो तुम इस चीज़ को भी हाईलाइट कर लो कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी जो होती थी वहाँ पे हम जो फिल्म्स को डेवलप कर रहे होते थे, तो इफ़ यू डोंट नो लेट मी टेल यू कि ये मेनली ब्लैक रूम्स में होते थे। एक कार्डबोर्ड का ब्लैक रूम बनाया जाता था स्पेशली इन द स्टूडियो, जिसके अंदर जो केमिकल्स यूज होते थे उसको वर्क किया जाता था और लास्ट में उसे हैंग कर दिया जाता था एयर में, जिसकी वजह से सूख के एक फिल्म डेवलप हो जाता था। तो इसके लिए एक प्रॉपर लाइक अ केमिकल लैब की तरह होता था जहाँ पे डिफरेंट केमिकल्स को यूज करते थे, फोटोज क्रिएट करते थे। ओके, सो अब के टाइम पे तो काफ़ी डिफरेंट है, दिस प्रोसेस इज टोटली चेंज। तो यहाँ पे हम वॉशिंग करते थे विद द हाइपो सॉल्यूशन, इसका वो डेवलप्ड फिल्म का, और वहाँ पे डिजोल्व हो जाता था अनडिकम्पोज्ड AgBr। और वहाँ पे हमें एक कॉम्प्लेक्स मिलता था जो कि सिल्वर का कॉम्प्लेक्स था। यहाँ पे तुम देख लो वो कॉम्प्लेक्स कौन सा था, Ag, और यहाँ पे H2O3 का दो ठो मॉलिक्यूल है, तुम कह सकते हो दो ठो लेगेंड्स की मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसे तुम्हें याद रखना है। ओके, नाउ देयर इज ग्रोइंग इंटरेस्ट इन द यूज ऑफ द चिलेट थेरेपी। इसको कर लो हाईलाइट। ये है चिलेट थेरेपी का हाईली यूज हो रहा है मेडिकल केमिस्ट्री में। तो इसका जो एग्जांपल है दैट इज द ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल इन द टॉक्सिक प्रोपोर्शंस इन प्लांट्स या एनिमल सिस्टम। तो यहाँ पे हम चिलेट प्रोसेस का यूज करते हैं। सो एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय द चिलेटिंग एजेंट्स डी पेनिसिलिमाइन और डेस्फेरोडेक्सिन बी। सो दिस टू एग्जांपल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, इसको मैं सेपरेटली लिखने वाला हूँ। नाउ EDTA is used in the treatment of lead poisoning. Some coordination compounds of platinum effectively inhibit the growth of tumor, जिसका एग्जाम्पल है सिस्प्लेटिन। तो हमने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देखा। पहला उसमें से था सिस्प्लेटिन, दूसरा हमने देखा EDTA से रिलेटेड, तीसरा हमने देखा डी पेनिसिलामाइन, फिर एक और जो हमने देखा डेस पेरिऑक्सिन बी। तो इन सबको तुम लिख लो। सिस्प्लेटिन जो होता है ये कैंसर से रिलेटेड के लिए था, और जो हमारा EDTA था ये लीड पॉइजनिंग को खत्म करने के लिए था, लीड पॉइजन। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि EDTA लीड पॉइजन कर रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ट्रीटमेंट, छोटा सा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ट्रीटमेंट, कैंसर का भी ट्रीटमेंट, लीड पॉइजन के भी ट्रीटमेंट के लिए, कैंसर के लिए सिस्प्लेटिन और लीड पॉइजनिंग के लिए EDTA यूज होता था टू ट्रीट दिस। नाउ जो डी पेनासिलामाइन थी यहाँ पे एक्सेस ऑफ कॉपर के लिए यूज होता था, रिमूव एक्सेस कॉपर। नाउ जो यहाँ पे डेस्फेरोडॉक्सिन बी था वो करता था रिमूव एक्सेस आयरन, ठीक है, Fe।
तो यहाँ पे हमने टोटल देख लिया। ओके, हमने यहाँ पे टोटल देख लिया इस चैप्टर को। अब इसके समरी को हम देख लेते हैं। समरी में भी कुछ नहीं है, अगर जो चैप्टर का होगा बस वही वाले क्वेश्चंस होंगे, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा मिले नहीं, बस हम इसको कवर कर लेते हैं एक बार, 2 मिनट लगेगा। So the chemistry of the coordination compound is an important and challenging area of modern inorganic chemistry. During the last 50 years, advancement in this area have provided the development of new concept, models, bonding and the molecular structure, novel breakthrough the chemical industry and vital insight into the functioning and the critical component of the biological system. Okay, we know this. The first systematic attempt of explaining the formation वो था हमारा ए वार्नर के द्वारा। हिज थ्योरी यूज 2 टाइप्स ऑफ लिंकेज, जो था प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसको हमने अच्छे से देखा, बाय द मेटल एटॉम आयंस एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। सो हम मॉडर्न लैंग्वेज में केमिस्ट्री को लिंक करते हैं, रिकोगनाइज करते हैं आयोनाइजेबल, आयोनिक और नॉन आयोजेबल यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड से, यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ आइसोमेरिज्म। वार्नर ने प्रिडिक्ट किया जियोमेट्रिकल शेप्स को विद द हेल्प ऑफ द कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। फिर हमारे सामने आया वीवीटी, जिसने एक्सप्लेन किया रीजनेबल सक्सेस को फॉर्मेशन और मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, ज्योमेट्रिक शेप्स के लिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। बट ये फेल हो गया कहाँ पे? क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन, लेट मी रिमूव दिस, क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक बिहेवियर में ये फेल होता हुआ दिखा। और यहाँ पे हैज नथिंग टू से अबाउट द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस कंपाउंड्स। फिर हमारे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आया CFT। नाउ ये जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड था ये बेस्ड था इफेक्ट ऑफ डिफरेंट क्रिस्टल फील्ड पे, तो प्रोवाइडेड बाय द लिगेंड टेकन एज अ पॉइंट चार्ज। तो हमारा जो लाइगेंड था एनायोनिक, उसको हमने पॉइंट चार्ज मान लिया था, और जो हमारे पॉइंट डाइपोल्स हमने मान लिए थे न्यूट्रल वाले लाइगेंड्स को, ठीक है, फॉर एग्जांपल वाटर एंड अमोनिया। ऑन द डीजेनरेसी ऑफ द डी ऑर्बिटल एनर्जीज ऑफ द सेंट्रल मेटल और आयंस। सो द स्प्लिटिंग ऑफ द डी ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इन अ स्ट्रॉन्ग एंड अ वीक फील्ड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड के लिए ये होता है, वीक के लिए ये होता है, ठीक है। However, these assumptions that the ligands constitutes the point charge create many theoretical difficulties, जिसकी वजह से हमने LFT को देखना था और MOT को देखना था, बट ये हमारे अभी स्कोप से ऊपर है पढ़ाई के, सो हम इसको नहीं देखते हैं। द मेटल कार्बन बॉन्ड इन द मेटल कार्बोनाइल्स पोजेस करते थे सिग्मा और पाई कैरेक्टर को। जो लाइगेंड ऑफ द मेटल सिग्मा बॉन्ड और जो मेटल टू द लाइगेंड सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, यानी कि ये मेटल था, ये कार्बोनाइल ग्रुप था। तो मेटल से कार्बोनाइल ग्रुप की तरफ हमारा बन रहा था पाई बॉन्ड, और कार्बन ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप से मेटल की तरफ बन रहा था हमारा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो दिस यूनिक सिनर्जेटिक बॉन्डिंग प्रोवाइड्स द स्टेबिलिटी ऑफ द मेटल कार्बोनाइल्स, और इसकी वजह से एक यूनिक सिनर्जेटिक बॉन्डिंग बन रही थी। ओके, सो दिस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आर ऑफ द ग्रेट इंपॉर्टेंस। These compounds provide the critical insight into the functioning and the structural of vital component of the biological system, जिसको हमने अभी चीज देखा। Now coordination compounds also found extensive application in the metallurgical process, analytical chemistry में और medical chemistry में भी। So here we are done with this chapter. अगर हमें टाइम मिला so we will do the exercise question also in the coming series, and example तो हमें करना ही करना है, that is must for the examination. So here we are done with this chapter. ये 2 लेक्चर्स में टोटल चैप्टर था। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर देन यू शुड लाइक, कमेंट, और चैनल का ग्रोथ चाहिए तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इसके लिए चाहिए मोटिवेशन, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।